ठीक है। So, hi everyone. My name is Pankaj Joshi. I'm having 16 plus years of experience in corporate and an 8-year experience in trainings team. So here in AFCKS, I'm conducting different batches like Excel, Power Query, VBA, SQL, Python, Advanced VBA. So all these batches I'm taking. Okay, and today this demo is for Power BI. क्लियर, ये आज का डेमो रहेगा पावर बीआई। तो टीम, बिफोर मूविंग अहेड, डू यू आर यू वर्किंग इन पावर बीआई एप्लीकेशन? आप में से कोई काम कर रहा है पावर बीआई में पहले से? No. Yes. श्वेता काम कर। Yes. Yeah. और अजय? Actually, I want to tell you, I had already joined this class like back in like 2021, I guess. So now it is again a refreshing like session for me Okay. because I was on long leave, so इसलिए I had to join. Perfect, Shweta. Perfect. So you have already done. At that time, our course was, I think, ठीक है, चलो हम देखते हैं कैसा रहेगा. I think that time it was Power Query somewhere 60-70 example Power Query, right? 2021 का ऐसा होता था. हाँ 2021 और 22 लाइक ऐसे ही किया है मैंने. शब्बीर सर वाज टेकिंग माय बैच, सो ओके. हाँ ठीक है श्वेता. और अभी आप डेली बैच को टारगेट करना चाहते हो ना? yes because I'm on leave, तो it will complete fast and I can join somewhere. करेक्ट. 2 months में हो जाएगा. परफेक्ट. Yes. करेक्ट. ठीक है. For Azure it is a new application, right? And Not new, but not in practical applications. But I'm aware of the Power BI. अच्छा, ठीक है. फिर Azure have heard about this application? लेकिन Yes, I have gone through with some of the videos as well, but never done on a practical. Yeah. Perfect. Azure, any course you have done in AFCKS before? I did Excel, Advanced Excel, then VBA under Raza sir, and also I did Python with Shaker. Acha. I think 2 years back. Yeah. 2 years back. Okay. Some Python batch is also coming next week, and it will be my batch only. Okay, Python batch is also coming. Okay. So here Python, I and Shaker sir takes Python batch. Okay. So that is weekly or on a weekend basis? Weekend or weekend? It is a weekend batch, and the timing is 12:30 to 5 o'clock. Okay. 4.5 hours batch. If you wanted to do recap of that batch also, you can see that. But we will discuss that separately. But right now, let's focus on the demo of Power BI. Okay, हम लोग बात. Yes, please. Yeah. Hi Deepak. अच्छा, दीपक आए थे ना यहाँ पे? दीपक नहीं, सुरेंद्र. हाय सुरेंद्र. मेरी आवाज आ रही है आपको? हाय सर, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग सुरेंद्र. आवाज आ रही है ना क्लियर आपको? यस सर, यस. ठीक है सुरेंद्र, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सेशन को हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट है नहीं ना बाद में देख सकते हैं. ठीक है. ओके सर. ओके. चलो स्टार्ट. जो भी मतलब क्लास होगा वो बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगा ना आपको? सुरेंद्र, वो क्लास जो है ना वो रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी. हाँ. क्या होगा, हम ना रियल टाइम इतना अच्छा करेंगे कि हमें रिकॉर्डिंग की जरूरत भी नहीं होगी आपको. आप एफसीके के स्टूडेंट हो पहले सुरेंद्र? आपने एफसीके से कोई कोर्स किया पहले? सर आपका आवाज ब्रेक. हाँ सुरेंद्र, आपने एफसीके से पहले कोई कोर्स किया है क्या? विवेक है थोड़ा ही किया, पूरा अच्छा. मतलब क्या हो गया, जॉब की वजह से जाने के लिए नहीं होता था, इसलिए नहीं किया. कौन सा ट्रेनर कौन थे? राहुल सर करके थे विमान नगर में. राहुल? हाँ. नहीं, आपने एएफसीके से नहीं किया. सॉरी, आपने एएफसीके से किया था? एएफसीके हमारे इंस्टीट्यूट से किया था? नहीं वहां से होगा. हाँ. ठीक है. मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ. यहाँ तो पहली बार आ रहे हो ना? हाँ यस सर, यस. आपका मतलब क्लास का नाम सुना है मैंने बहुत, मतलब मेरे फ्रेंड ने वगैरह किया है. अच्छा, आपने किसी फ्रेंड का? कौन है आपके फ्रेंड का नाम? क्या? अमित बोरकर करके विवेक किया है उन्होंने. अमित बोरकर. अच्छा, ठीक है. परफेक्ट. ओके सर. ठीक है. तो टीम देखो कि
पावर बीआई का बैच रहने वाला है डेली बैच. ओके, so now let's understand what is Power BI. Who are already working in Power BI, that is fine. Let's talk about let's see from scratch. Okay, so in a simple word team, Power BI means a very raw data, converting a very raw data into a meaningful report. एक ऐसी रिपोर्ट बनेगी अच्छी वाली. एक ऐसा कोई भी डेटा हो, ऐसा बेकार से बेकार डेटा, उसको एक बेस्ट विजुअलाइजेशन देना, बैकग्राउंड पे बहुत सारे ऑटोमेशन, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखना, ये सब पावर बीआई का काम है. अब ये सब काम ना एक्सेल पे नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें ना बहुत फीचर्स हैं. क्या क्या फीचर्स हैं? ये रिपोर्ट ना रियल टाइम रिपोर्ट्स होती है, ये इंटरेक्टिव होती है, ये इतने अच्छे अच्छे विजुअल्स होते हैं जो हमें एक्सेल पे नहीं मिलते हैं. ठीक है, इतने अच्छे अच्छे ट्रेमेंडस ऑप्शंस हैं ऑटोमेशन के, एक्सेल पे भी है वो चीज. ये जो है ना, इसका एक ऑटोमेशन टूल. तो आर एनीवन नोज द ऑटोमेशन टूल बिहाइंड पावर बीआई? पता है किसी को पावर बीआई के पीछे एक ऑटोमेशन टूल है? एक खतरनाक खतरनाक कंपोनेंट है इसका. कौन सा कंपोनेंट है, पता है किसी को? जीजो इज अवेयर अबाउट दैट. जीजो, व्हाट इज द ऑटोमेशन टूल बिहाइंड दिस पावर बीआई? Power Query. Power Query, one of the powerful tool team. So that Power Query works behind Excel also. यहाँ पे भी काम करता है. ठीक है. तो in short team, in short, we'll see both practically also and theoretically also. Okay. In short, in a single line, a very raw data can be converted into a meaningful report, and through this application, which is a part of business intelligence application. ठीक है. अब ये बीआई एप्लीकेशन क्या है? ये क्या सिर्फ पावर बीआई है? नहीं, पावर बीआई तो बहुत बाद में आया है. पावर बीआई से पहले पहले अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस थी. किसी को पता है कोई दूसरी बीआई एप्लीकेशन के बारे में? पावर बीआई तो बाद में आया है, उनको देख के आया है पावर बीआई. तो कोई भी एप्लीकेशन जो आपने सुना हो पावर बीआई के कॉम्पिटिटर्स? So ClickView, वेरी गुड. Business Object, because I worked on it. Tableau. Tableau, yeah, correct. So these are the competitors. श्वेता, पावर बीआई के कॉम्पिटिटर्स है वो. लेकिन आज की डेट में क्या है, हर ऑफिस में आपको पावर बीआई दिखेगा. क्यों? काफी यूजर फ्रेंडली है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट अगर आता है किसी भी प्रोडक्ट में तो हमेशा टॉप पे रहता है वो. यानी अगर आप एक्सेल देख लो, आप इसका पावर ऑटोमेट देख लो, है ना. पावर ऑटोमेट के भी कॉम्पिटिटर्स है ना बहुत सारे. जैसे आप देखोगे Right. रोबोटिक ऑटोमेशन पूरा पावर ऑटो इसका कंपटीशन था ना. जैसे आप देखोगे ब्लू प्रिज्म, यूआई पाथ हो गया, अपना ऑटोमेशन एनीवेयर हो गया, ये सब कॉम्पिटिटर्स है इसके. ये सारे हटके अभी पावर ऑटोमेट अभी टॉप पे चल रहा है. उसी तरह से बीआई विजुअल्स में भी ये अपना बीआई एप्लीकेशंस में भी टैब्लू था, क्लिकसेंस था. मतलब वो तो है, अभी भी है. क्लिकसेंस है, टैब्लू है, गूगल स्टूडियो हुआ करता था. So these all are the competitors for Power BI. But right now in every office, most of the offices is adopting Power BI only. क्योंकि काफी अच्छे अच्छे फीचर्स है इसमें, काफी यूजर फ्रेंडली है, काफी इजी है, बहुत सारी चीजें. ठीक है. तो चलो, ये तो हमने सिंपल एक लाइन में बोल के मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ओके. ये किसी भी बेकार से बेकार डेटा को एक अच्छा व्यू देना, और उसके पीछे बैकग्राउंड में जो भी चीजें हो रही है, हजारों चीजें बैकग्राउंड में हो रही है. सो दैट इज पावर बीआई विच विल डू इट. ओके. सो लेट्स सी व्हाई पावर बीआई. पावर बीआई क्या है? ये पावर बीआई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? तो टीम, पावर बीआई पहले नहीं था. पहले क्या था? अलग अलग एड इन हुआ करते थे. ठीक है. 2010 से, फ्रॉम 2010 these add-ins were there in the market. सबसे पहले क्या था? पावर पिवट था, अपने पावर व्यू हुआ करता था, फिर क्या होता था? पावर क्वेरी होता था. तो ये ना तीनों एड इन तो थे ही उनके पास. लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट ने क्या देखा कि यार ये एक एप्लीकेशन है टैब्लू क्लिकसेंस, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमारे पास कोई ऐसी बीआई की एप्लीकेशन नहीं है. तो उन्होंने क्या किया, उस एप्लीकेशन को रेफरेंस रख के, टैब्लू वगैरह को रेफरेंस रख के एक अपनी खुद की एप्लीकेशन निकाली. और उसमें ना इन्होंने इनके ऑलरेडी रेडी टूल थे, पावर क्वेरी, पावर पिवट, विजुअल्स, सबको एक साथ कंबाइन कर दिया. कंबाइन करके वो एप्लीकेशन बाहर आ गई, पावर बीआई. इस सभी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जो अलग अलग जगह काम कर रहे थे, अलग अलग एड इन हुआ करते थे, उन सबको कंबाइन करके एक अच्छी एप्लीकेशन बनाई उन्होंने. ठीक है. तो अभी कंपोनेंट की बात करते हैं हम. कंपोनेंट है क्या ये?
ये ऐसे क्या कंपोनेंट है जो इतना स्ट्रांग बना रहे हैं इसको, ठीक है। नंबर 1 कंपोनेंट टीम पावर क्वेरी। पावर क्वेरी नहीं होता तो पावर बीआई आज की डेट में इतना स्ट्रांग नहीं होता। क्यों? क्योंकि पावर क्वेरी में ही सब कुछ होता है। अगर आप पावर बीआई में काम करोगे टीम, ओके, अगर मैं पावर बीआई में काम करता हूँ तो मेरा पहला काम तो यही है कि मैं पावर क्वेरी से डेटा लाऊंगा। करेक्ट सुरेंद्र? आपको पता है ना पावर क्वेरी के बारे में थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है अजर, तो होता क्या है, सबसे पहले ना डेटा पावर क्वेरी में आता है, पावर क्वेरी। अब पावर क्वेरी में डेटा आ गया तो डेटा हो सकता है एक सोर्स से नहीं आ रहा, हमारे 5-6 सोर्स से आ रहा है। अब 5-6 सोर्स से मुझे क्या करना है, डेटा को एक जगह अपेंड करना है, या अब मतलब एक के नीचे एक लाना है। कुछ डेटा हो सकता है मुझे मर्ज करना हो, यानी वी लुकअप लगाना हो। कुछ डेटा हो सकता है मुझे कॉलम ऐड करने हैं, कॉलम डिलीट करने हैं, रो डिलीट करने हैं, रो फिल्टर लगाने हैं। एन नंबर ऑफ, जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, एन नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो। यानी पावर क्वेरी इज द एंट्री पॉइंट, यही डेटा को वेलकम करता है कि आ जाओ, अभी हम लोग को आगे जाना है, ठीक है। दूसरा एक्सट्रैक्शन, वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम एन नंबर ऑफ सोर्सेस। ऐसा नहीं है कि आप एक्सेल से ही डेटा लाओगे, आप एक्सेल से ले आओ, टेक्स्ट फाइल से ले आओ, सीएसवी फाइल से ले आओ, आप वेब से डेटा ले आओ, आप गूगल शीट से ले आओ, आप वन ड्राइव से ले आओ, आप वन ड्राइव से ले आओ, आप पाइथन से ले आओ, आप एसक्यूएल सर्वर से ले आओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में देखेंगे कि अलग अलग सोर्सेस से डेटा कैसे लाना है, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा तो आ गया, फिर उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म मतलब जो भी हजारों ये करने ना, एक्सेल पे तो नहीं करोगे ना आप काम। आप बोलोगे चलो डेटा आ गया, अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेल पे कॉलम ऐड करता हूँ, एक्सेल एक्सेल पे कॉलम डिलीट करता हूँ। तो इट विल नॉट हैपन इन एक्सेल, राइट? ये सब ऑटोमेटेड प्रोसेस होना चाहिए। तो दिस ऑटोमेटेड प्रोसेस विल गो थ्रू पावर क्वेरी, ये पावर क्वेरी से होगा वो काम। फिर फाइनली उठाना है, डेटा को लोड करना है। और इसका एक फायदा है कि जो डेटा बड़ा साइज होता है ना, इतनी बड़ी साइज नहीं, छोटी साइज हो जाती है डेटा की काफी। हम देखेंगे, लाइव एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर टीम इसका पावर पिवट। पावर पिवट में क्या होता है टीम, एक सेकंड देना, मैं ये चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ फटाक से, बस एक सेकंड देना। होपफुली मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है बीच में। यस क्लियर, बट बीच बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा आई नेटवर्क डोंट नो मेरे एंड पे हो रहा है या सबके लिए हो रहा है। जस्ट वांटेड टू कंफर्म। और किसी को हो रहा है टीम, ऐसी आवाज कम ज्यादा हो रही है किसी को? नहीं सर। अच्छा माइट भी मेरे यहाँ पे होगा। ओके अच्छा पता नहीं दी यहाँ पे सुरेंद्र। चलो एक सेकंड ना, बस मैं चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी ध्यान से आगे देखते हैं हम लोग। एक सेकंड देना टीम, मैं थोड़ा चार्जर में लगाऊं। ठीक perfect, ठीक है। So this power query, as we discussed, this is the entry point of the data, okay? It will do n number of operations. Now second important component of Power BI वो है पावर पिवट। पावर पिवट, तो पावर पिवट क्या करता है, जैसे डेटा होता है ना रियल लाइफ में, ऐसा नहीं है कि एक टेबल में डेटा पड़ा है, करेक्ट। टेबल डेटा क्या होगा, बहुत सारे मल्टीपल टेबल होंगे, मल्टीपल टेबल्स। वो टेबल आपस में कनेक्ट होंगे, कनेक्ट, करेक्ट ना। आप डीमार्ट में अगर आप जाओ, मैं एग्जांपल लेता हूँ डीमार्ट। डीमार्ट का डेटा क्या एक एक्सेल शीट में है क्या, वो डेटा जितना भी डीमार्ट का डेटा है कि रोज कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज हमारे पास काम करते हैं, कितने सप्लायर्स हैं हमारे पास, कितने प्रोडक्ट्स हैं। एक एक्सेल शीट में डेटा नहीं है, वो बहुत सारे अलग अलग टेबल्स बने होंगे, करेक्ट। और वो टेबल आपस में कनेक्ट होंगे, कनेक्ट। अगर एक एक्सेल शीट में होता डेटा, या किसी भी एक जगह पे अगर डेटा पड़ा होता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती। पहली प्रॉब्लम क्या होती, वो डेटा हजार बार डुप्लीकेट होता वो, करेक्ट। तो होता क्या है, रियल वर्ल्ड में ना डेटा अलग अलग टेबल में पड़ा होता है, और वो टेबल्स में ना आपस में रिलेशनशिप होते हैं सारे, जब भी जो भी चीजें चाहिए पुल कर लो, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पावर बीआई इज पावर पिवट। ये भी एक अच्छा कंपोनेंट है इसका, इसकी वजह से काफी हम लोग बहुत सारे टेबल्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा,
बहुत अच्छे विजुअल्स हैं टीम यहाँ पे, बहुत अच्छे विजुअल्स, यानी जो एक्सेल में भी नहीं है हम बाहर से भी ला सकते हैं विजुअल्स, और इसके अंदर के खुद के विजुअल भी बहुत अच्छे हैं और आपस में इंटरेक्टिव है वो, इंटरेक्टिव। ठीक है, तो ठीक है, तो एक आइडिया कंपोनेंट का नाम तो आपने सुन लिया। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक लाइव सिनेरियो देखते हैं, है ना। हम फटाफट एक क्या क्या, क्या करते हैं, जल्दी से एक डैशबोर्ड बना लेते हैं, और वो हमें हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा फिर। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पावर बीआई की एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। पावर बीआई, देखो ऐसे एप्लीकेशन दिखती है पावर बीआई। तो डे वन में हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंस्टॉल पावर बीआई एप्लीकेशन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डे वन में। तो ये फ्री एप्लीकेशन है, आप उठा सकते हो और हम लोग काम कर सकते हैं, बस एक इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको। तो आपके पास है, सभी के पास, सुरेंद्र है एप्लीकेशन ये वाली पावर बीआई? यस सर है। अजहर आपके पास भी है पहले से एप्लीकेशन? Yes, it's installed. Yes. Good. Jiju, you are also having this application before already? Power BI application? चलो श्वेता के पास तो है Yes, ऑलरेडी। yes. Is having, okay, श्वेता के पास तो पहले से। चलो, now team, this is Power BI application. It look like this. So treat this application same like Excel. ठीक है, ये पूरी एक्सेल ही है। एक्सेल कैसे, जैसे एक्सेल में नीचे शीट्स होती है ना, यहाँ पे भी शीट्स है, देखो यहाँ पे पेजेस है, पेजेस। अब पहले पेज पे आ जाओ। एक्सेल में ऊपर क्या होता है, अलग अलग मेन्यूज होते हैं, करेक्ट, अलग अलग मेन्यू, जैसे फाइल हो गया, डेटा हो गया, फॉर्मेट हो गया, अलग अलग चीजें। तो यहाँ पे क्या हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, मॉडलिंग हो गया, ये अलग अलग चीजें हैं। तो अभी इसमें अलग चीज क्या है वो देखते हैं हम लोग। अलग क्या है, इसमें ना लेफ्ट में पेन्स है बहुत सारे। ये लेफ्ट में ये लेफ्ट में ये दिख रहा है एक अपना, ये लेफ्ट में ये पोर्शन अलग है, राइट में ये पोर्शन अलग है, ये वाला। फिल्टर तो हमेशा होता नहीं है, मैं क्या करता हूँ, व्यू से फिल्टर हटा देता हूँ। हमेशा क्या होता है, ये वाला पेन होता है और ये वाला पेन, बस ये एप्लीकेशन ऐसे ही दिखेगी आपको। ये जो दिख रही है एप्लीकेशन, बिल्कुल हमेशा ऐसी दिखेगी। यानी यहाँ पे साइड में पेन होंगे, लेफ्ट में ये चीजें होंगी, ये क्या है एक एक करके देखते हैं हम लोग, और नीचे पेजेस होंगे, तो पेजेस। और नीचे क्या होगा, डेस्कटॉप में कैसे दिखेगा, मोबाइल में कैसे दिखेगा, मोबाइल में कैसे दिखेगी रिपोर्ट। ठीक है, अलग अलग चीजें। तो अभी हम लोग क्या करते हैं टीम, अभी हम लोग एक डेटा लेते हैं और इस पे काम करते हैं। ठीक है, जल्दी से क्विकली एक अच्छा डैशबोर्ड बना लेते हैं। बनाए फिर क्विकली एक डैशबोर्ड, चलो बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं होम में। फिलहाल मैं एक डेटा रख लेता हूँ, बस एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, तो ये पावर बीआई का मेरा 12th नंबर का बैच होगा टीम। इससे पहले 11 बैचेस हो चुके हैं मेरे पावर बीआई के। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ये हमारा डेटा है। लेट्स ओपन द डेटा। हम ओपन करते हैं डेटा को। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सा ऐसे ही मैंने बस डेमो के लिए एक डेटा ले लिया है। ये है, इसमें ऑर्डर की डिटेल है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट, ये सारी डिटेल्स पड़ी है। कंट्री है, सिटी है, यानी जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके सेगमेंट क्या है, कैटेगरी क्या है, अलग अलग चीजें पड़ी हुई है। यहाँ पे वो ऑर्डर कभी रिटर्न हुआ था क्या, कौन कौन से लोग हैं इसमें, कुछ पर्सन की डिटेल है, कौन कौन कहाँ कौन सा रीजन ऑपरेट कर रहा है, वेस्ट में कौन देख रहा है, ईस्ट में कौन देख रहा है, इस तरह का एक 3 शीट का डेटा है। ऑर्डर भी है, रिटर्न्स भी है, और पीपल भी है। ओके, ऑर्डर, रिटर्न्स, पीपल। So now team, what we will do? Team, wait a minute, please. गीता, दरवाजा बंद करो। Okay. So now team, yeah, ठीक है। So what we will do now, team, we will get this data. वो डेटा लेके आते हैं हम लोग। तो कैसे लाएंगे डेटा, आप जाओ गेट डेटा में जाओ, आप एक्सेल वर्कबुक पे जाओ, यहाँ से भी ला सकते हो, हम यहाँ से लाते हैं एक्सेल वर्कबुक। नाउ एक्सेल वर्कबुक, आई विल गो टू दैट डेटा। तो वो है क्या, पाथ। मैं क्विकली जाता हूँ पाथ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो टीम, दिस इज जस्ट द डेमो क्लास। मैं आपको यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ, बस मैं जल्दी से व्यू बनाऊंगा। ठीक है,
रियल क्लास में हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और एक साथ अब मेरे साथ प्रैक्टिस भी करोगे। जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी ये फास्ट जाने वाला है, ठीक है। बस आप देखते रहो, कोई एक आइडिया देना है मुझे बस आपको, ठीक है। चलो ठीक है ना टीम, बात सब क्लियर है आप सभी को? एवरीवन, अजहर, सुरेंद्र, श्वेता, यस सर। ठीक है। मैं समझाने वाला Yes. हूँ, आपको मैं पास से बता जाने वाला हूँ, ठीक है। मैं समझा नहीं रहा हूँ यहाँ पे। चलो, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हमने डेटा ये ले लिया, ये डेटा, ये डेटा। अब एक्सेल एक्सेल डेटा लिया हमने यहाँ पे। अब देखो तीन चीजें हैं अपने पास, ये ऑर्डर शीट है, पीपल है और रिटर्न्स है। ऑर्डर, पीपल, रिटर्न, चलो तीनों को ही ले लेते हैं, ऑर्डर, पीपल, रिटर्न। लेकिन आपको देखो ऑर्डर शीट में कोई प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे? ये राइट में कोई आर यू एबल टू सी एनी प्रॉब्लम हियर? कॉलम 1 2 3 4 कुछ प्रॉब्लम दिख रही है? कोई भी आप यस सर, फीडर ऊपर मतलब नीचे आ गए हैं। हाँ, हेडर सही से नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैं क्या करता हाँ हूँ, अपने ये डायरेक्टली लोड नहीं कर सकते। हम लोग ना क्या करेंगे, हम पावर क्वेरी में जाके पहले जो भी चीजें प्रॉब्लम है ना उसको ठीक करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ टीम, बैकग्राउंड में कोई आवाज तो नहीं आ रही है आपको सभी को? कुछ आ रही है क्या आवाज बैकग्राउंड में? मैं अपनी जगह, एक मिनट, जगह चेंज करता हूँ, मेरे ख्याल से बैकग्राउंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। एक सेकेंड टीम। हाँ टीम, बस एक सेकंड देना प्लीज। ठीक है, तो परफेक्ट। नाउ व्हाट विल डू, नाउ लेट्स लोड द डेटा। ये ना ऑर्डर हो गया, पीपल हो गया, रिटर्न हो गया। सो व्हाट विल डू, आई विल गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करके क्या करते हैं, ये जो विंडो है ना, ये वाला ट्रांसफॉर्म, तो ये पावर क्वेरी है टीम। पावर क्वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पावर क्वेरी की वजह से, ये पावर क्वेरी 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, 50%। यानी पावर क्वेरी में कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो ये इंपॉर्टेंट है 50%। आप बोल सकते हो 50 या 40%। 40% डेक्स का वेटेज है और 20% कुछ भी जो ड्राइंग बना रहे हो ना, वहाँ पे अलग अलग चार्ट्स बना रहे हो, उसका वेटेज सिर्फ 20% है। तो मेन जो काम होगा वो होगा पावर क्वेरी, ठीक है। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं इसके हेडर्स को प्रमोट करता हूँ। आई प्रमोट द हेडर्स। सो व्हाट आई डू, आई गो टू होम, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, इसको प्रमोट किया। नाउ वट एवर यू विल डू टीम, सो द पावर बी आई पावर क्वेरी व्हाट इट विल डू, इट विल रिकॉर्ड एवरीथिंग। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूं तो डेटा पहले जैसे हो जाएगा। अगर मैं वापस कर दूं यूज फर्स्ट रो एज हेडर, तो जो भी आप करने वाले हो ना, सपोज पूरा डेटा मैं डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट किया, डिलीट, गलती से मुझसे डेटा डिलीट हो गया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डेटा वापस आ जाएगा। अब बस आप इस वाले स्टेप को हटा दो तो वापस आ जाएगा, करेक्ट। तो जो भी काम करोगे वो सब कुछ हो जाएगा सही, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक ऑप्शन ऑफ किया हुआ है। तो डिटेक्ट डेटा टाइप, ठीक है, डिटेक्ट डेटा टाइप। तो ये क्या कर रहा है, डेटा टाइप ये बता रहा है। तो पीपल, पीपल का भी मैं क्या करता हूँ, इसके हेडर ऊपर ले लेता हूँ, होम, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, बराबर। यहाँ पे क्या, रिटर्न्स का भी ये काम करता हूँ, होम, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, फर्स्ट रो एज हेडर, ठीक है। यहाँ पे गए यूज फर्स्ट रो एज हेडर। अब ये जो है ना, ये पावर क्वेरी एक लैंग्वेज पे चलती है, दिस इज अ लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड एम लैंग्वेज। तो अगर मुझे एम लैंग्वेज आती, ठीक है, तो एम लैंग्वेज मुझे, हम अपने कोर्स में देखने नहीं वाले एम लैंग्वेज, क्योंकि पावर क्वेरी का एक सेपरेट कोर्स है जिसमें एम लैंग्वेज देखते हैं हम लोग, ठीक है। बट सपोज आई आई नो दैट लैंग्वेज, तो मैं ये वाले टूल यूज नहीं करता ऊपर के, मैं क्या करता यहीं पे लिख देता, कैसे, इक्वल टू टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स। मैं आपको लिखता यहाँ पे टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, और मैं कुछ ऐसा लिख लेता, ऐसा, ठीक है। तो this is all power query m language. So for this also we have a separate course team, ठीक है, एक सेपरेट एक डिटेल कोर्स है। लेकिन ये वाला जो कोर्स है इसमें हम लोग ये सारे ऊपर के ऑप्शंस देखेंगे, हम यहाँ से नहीं देखेंगे चीजों को, ठीक है।
और जो पावर क्वेरी का बैच है वो भी अपना लॉन्च हुआ है, जो कि हर सैटरडे को होने वाला है, मॉर्निंग 8 to 12:30। ठीक है श्वेता, अगर डिटेल में आपको पावर क्वेरी सीखना है तो आप 8 to 12:30 को भी टारगेट कर सकते हो वाला बैच। Okay, sure, sure. ओके, दैट विल बी कंप्लीटली पावर क्वेरी, कंप्लीटली एम लैंग्वेज। ठीक Okay, है, क्योंकि okay. पावर क्वेरी में हम लोग करेंगे, पावर क्वेरी डेफिनेटली करने वाले हैं पूरा, क्योंकि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड ऑप्शंस होंगे, स्टैंडर्ड ऑप्शंस। अभी देखो हमने क्या किया टीम, डेटा को ठीक किया और डेटा को लोड कर दिया, लोड। ठीक है, तो आपने देखा होगा मैंने क्लोज एंड लोड किया था, क्लोज एंड लोड। तो अभी मैं फटाफट बता रहा हूँ चीजें आपको। तो हमने क्या किया था, डेटा जैसे यहाँ पे था, ट्रांसफॉर्म डेटा करता हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा, ये पावर क्वेरी था। तो मैंने देखा कि पावर क्वेरी में तो सब कुछ कर लिया हमने, सब कुछ कर लिया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, होम क्लोज एंड अप्लाई। तो डेटा रेडी हो गया, जो भी डेटा आपने किया था, डेटा सही किया, डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। यहाँ तक थोड़ा सा आइडिया मिला आपको, थोड़ा सा एक छोटा सा आइडिया? यस नो टीम, एक छोटा सा आइडिया मिला आपको? हेलो, Yes. हाँ, ठीक है। चलो हम लोग व्यू बनाते हैं, अलग अलग व्यू बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ इस जगह से कोई सा भी चार्ट उठा सकते हैं। यानी मैं सोचता हूँ चलो मैं ये वाला चार्ट उठा लेता हूँ, ये वाला। एक सेकंड, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कोई सा भी ये वाला चार्ट उठा लेते हैं। ये उठाया एक चार्ट, यहाँ पे बनाया। ठीक है, और इस चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्स में जाते हैं, ऑर्डर्स। यहाँ से हम जा सकते हैं अलग अलग टेबल में, ऑर्डर्स में जाते हैं। ऑर्डर्स में जाके हम बोलते हैं मुझे ना एक ये वाला व्यू दे दो, कैटेगरी वाइज वाला। कैटेगरी वाइज आप मुझे सेल्स दे दो, ऐसा। तो बस चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करो यहाँ पे। ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो देखो यहाँ पे चार्ट बन जाएगा, चार्ट। ये देखो एक चार्ट हो गया। तो चलो फिर इसी के साथ दूसरा चार्ट भी बनाते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे। और इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं ना, ऐसे। यहाँ से आते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। यहाँ से बड़ा किया, इसको भी बड़ा कर लिया ऐसे, दोनों को ऐसे कुछ आसपास। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा और बड़ा, इसको भी थोड़ा सा और बड़ा, यहाँ से पकड़ा इसको, कुछ ऐसा, ऐसा कर लिया। ठीक है, तो अभी करना क्या है, ये जो चार्ट है ना, ये तो कैटेगरी वाइज हो गया। इसको सब कैटेगरी कर देते हैं, कैटेगरी हटाओ, इसको बोल देते हैं मुझे ना सब कैटेगरी व्यू दो, सब कैटेगरी। ये सब कैटेगरी आ गया। डिजाइनिंग हम करेंगे, उस पर लास्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, नीचे क्या करते हैं, एक और व्यू बना लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। नीचे हम लोग यहाँ पे एक और व्यू बनाते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे। और इसमें ना सारे कस्टमर्स डाल देते हैं हम लोग। यहाँ चलते हैं और बोलते हैं कि सारे कस्टमर के नाम डाल दो, यहाँ पे डाल दो, ऐसे। तो देखो सारे कस्टमर के नाम आ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम, एक काम करें क्या, थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं पहले, फिर आइडिया आ जाएगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इस चार्ट को। इसमें अलग अलग चीजें करते हैं। पहले इसका वाई एक्सेस, इसको कहते हैं एक्स एक्सेस। दिस इज कॉल्ड टाइटल। सो लेट्स डू वन बाय वन। So let's target the x-axis first. So x-axis, y-axis. We don't want the y-axis. So what I'll do, I'll just click this. I'll click this. I'll go to this option. This option. Okay. तो यहाँ पे जाके मैं बोलता हूँ y-axis को ना ऑफ कर दो, नहीं चाहिए, वैल्यूज नहीं चाहिए उसका, उसका टाइटल भी नहीं चाहिए, टाइटल भी ऑफ कर दो। क्लियर, ये दोनों चीजें ऑफ हो गई। अब ये x एक्सेस, इसको कहते हैं x एक्सेस। तो क्या करोगे आप जाओगे x एक्सेस में और इसका टाइटल ऑफ कर दोगे, ये टाइटल ऑफ हो गया। ये जो वैल्यूज है, वैल्यूज के साथ थोड़ी छेड़छाड़, वैल्यू को थोड़ा बड़ा करते हैं हम लोग, इस तरह से। इसको बोल्ड कर देते हैं, वैल्यूज को बोल्ड, ऐसे हो गए। ठीक है, तो दो चीजें की आपने, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस। कैसे किया, क्यों किया, हम नहीं देख रहे हैं वो चीज। ठीक है, दिस इज डेमो। आई एम नॉट टीचिंग यू हियर, ओके। आई एम जस्ट शोइंग यू द थिंग्स। मैं कोई सिखाने के मकसद से नहीं बैठा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अपने को डेटा लेबल्स चाहिए, डेटा लेबल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं डेटा लेबल्स ऑन कर दो। ऐसे डेटा लेबल्स आ गए। लेकिन डेटा लेबल्स में रियल नंबर चाहिए अपने को, रियल नंबर। तो आप क्या, चलो आप क्या करो, ये मिलियंस में कन्वर्ट कर दे रहा है ना चीजों को, मिलियंस में। तो हम लोग डेटा लेबल्स को एक्सपैंड करते हैं, यहाँ जाते हैं,
और बोलते हैं कि डेटा लेबल्स को आपने बोला है ना, उसको एक्सपैंड मत करो, उसकी जो वैल्यूज है ना उसका डिस्प्ले यूनिट नन करो। यहाँ पे जाओ, डिस्प्ले यूनिट नन करो, नन, ताकि ओरिजिनल वैल्यू दिखे ऐसे। अब ये ओरिजिनल वैल्यू सही से नहीं दिख रही, बहुत सारे डेसिमल वैल्यू दिख रहे हैं। तो मैं रियल कॉलम को टच करता हूँ, रियल कॉलम को, और मैं बोलता हूँ इसको 1000 सेपरेटर दे दो, और ये डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, अब 0 कर दो, 0 डेसिमल वैल्यू ऐसा, और इसको बोल्ड कर दो, बोल्ड ऐसा। तो देखो रियल वैल्यूज आ गई। अब ये टाइटल पे छेड़छाड़ करते हैं, टाइटल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, हम बोलते हैं इसका जो टाइटल है ना, टाइटल, टाइटल को आप क्या करो, बैकग्राउंड कलर दे दो, एक बैकग्राउंड कलर। So give a background color here to the title. So let's give this background color. Now let's make the title bold. Let's bring the title to center. Let's bring the title to center like this. So title is not looking good because it is showing sum of sales. तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा हटाते हैं इसको, यहाँ पे टाइटल लिख देंगे क्या है ये बोल देते हैं ये है कैटेगरी वाइज सेल्स। क्लियर, कैटेगरी वाइज सेल्स। तो एक छोटा सा व्यू। So now let's give some background, this border also, border. So what we'll do, I'll go here general effects, कहाँ जाना है कब जाना है देखेंगे, फिलहाल borders ले आते हैं, borders। So these are the borders, ऐसा, ऐसे आगे, ठीक है। वेरी बेसिक फॉर्मेटिंग आई हैव डन, वी विल डू ग्रेट फॉर्मेटिंग, लेकिन अभी देखते हैं हम लोग। तो सेम दिस फॉर्मेटिंग आई वांटेड टू अप्लाई हियर आल्सो। तो व्हाट आई विल डू, फॉर्मेट प्रिंटर, और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे ऐसा, बट दिस चार्ट इज नॉट लुकिंग गुड, सो लेट्स चेंज द चार्ट। नाउ हियर आई यूज दिस चार्ट, ये थोड़ा अच्छा लगेगा। करेक्ट ना टीम, पहले से अच्छा लग रहा है ना ये वाला व्यू, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज सही दिख रहा है, सही दिख रहा है ना। चलो फिर अभी क्या करते हैं, नीचे कस्टमर्स आर नॉट लुकिंग गुड, इट इज टू मेनी कस्टमर्स। ओके, बहुत सारे कस्टमर, इतने नहीं चाहिए अपने को, अपने को नहीं रिड्यूस करने पड़ेंगे। सो लेट्स फिल्टर द कस्टमर, फिल्टर द कस्टमर्स। तो हाउ वी विल फिल्टर इट, लेट्स गेट द फिल्टर पेन, फिल्टर पेन लेके आते हैं हम लोग। हम जाते हैं व्यू में, हम जाते हैं यहाँ पे फिल्टर में, फिल्टर, और फिल्टर में ना यहाँ पे ये इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको, इसको। सो आई विल से कस्टमर नेम, just click customer name. I will say I don't want the customers like this. What we want to filter the customer. तो आप टॉप एन करो, यहाँ पे सेलेक्ट करो टॉप एन। टॉप एन में कितने, टॉप के सिर्फ 10 कस्टमर दिखाओ। ऑन द बेसिस ऑफ which field, सेल्स, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। तो आई वांट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स को पकड़ो, ट्रैक कर दो यहाँ पे, और अप्लाई कर दो, अप्लाई। तो देखो वो 10 कस्टमर है, ये 10 कस्टमर, ठीक है, 10 कस्टमर है ये। अब इस पे भी यही सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं हम लोग होम, यहाँ पे फॉर्मेट, और ये टॉप के 10 कस्टमर्स, ये वाले। चलो फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा। टीम आइडिया है ना, मैंने सिर्फ सारे कस्टमर्स नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ 10 कस्टमर देख रहा हूँ। आप बता सकते हो टॉप 10 कस्टमर्स देखने का मेरा क्यों, मैं चाहता हूँ टॉप 10 कस्टमर्स, बाकी पूरे कस्टमर्स क्यों नहीं चाह रहा था मैं? कोई बता सकता है क्यों मैंने ऐसा किया कि 10 ही कस्टमर देखना चाहता हूँ? क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स क्या कर रहे थे, पूरा डेटा, इतना सारा व्यू अच्छा नहीं आ रहा था, सही बात है ना टीम। जब ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसा था, तो समझ में नहीं आ रहा था ना कुछ भी कस्टमर्स के बारे में। यस, नो, Right. राइट, ये पूरी खिचड़ी बनी हुई है, दिस इज नॉट अ नाइस व्यू एक्चुअली। सो व्हाट विल डू, आई विल जस्ट रिड्यूस द इंफॉर्मेशन। सो अप्लाई फिल्टर। तो मैं ऐसा फिल्टर लगाता हूँ, और उसको मैं छोटा कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। एक कस्टमर ये हो गया कस्टमर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक और व्यू यहाँ बना लेते हैं, यहाँ एक मैप बना देते हैं, मैप, कुछ भी मैप में बना रहा हूँ यहाँ पे, मैप। तो लेट्स क्रिएट अ मैप हियर, नॉट हियर, कंट्रोल Z, हियर आई सेलेक्ट इन द ब्लैंक पेज, देन आई गो टू मैप, यहाँ पे मैप में जाता हूँ, और मैप में भी कुछ ऐसा डाल देता हूँ, स्टेट वाइज सेल्स दिखा दो। तो स्टेट वाइज मैं स्टेट को पकड़ता हूँ ऐसे, स्टेट यहाँ डाल देता हूँ, ये कुछ ऐसा डाल दिया स्टेट वाइज, है ना। तो किस किस स्टेट में क्या सेल हुई है पता नहीं चल रहा, देखो ये पता नहीं चल रहा,
क्योंकि मैप में यहाँ तो लेबल्स तो नहीं आते हैं, लेकिन ये जो ऊपर टूल टिप है ना, इसमें टूल टिप में आता है टूल टिप। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेट को यहाँ डाल देते हैं। हम लोग लेट्स गो टू सेल्स हियर, और सेल्स को टूल टिप में डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे। तो देखो ऐसे, अभी आप क्लिक करोगे तो देखो ऐसे आएगा, ऐसे दिख रहा है वॉशिंगटन की इतनी सेल्स है, इसकी इतनी सेल्स है, इतनी सेल्स है। ये टूल टिप को सुंदर बनाते हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो अभी पहले क्या करते हैं, सब कुछ इसका सही करते हैं। कैटेगरी वाइज सेल्स, दिस इज सब कैटेगरी वाइज सेल्स। टाइटल सही करते हैं। लेट्स गो टू जनरल, लेट्स गो टू टाइटल हियर, एंड व्हाट विल से हियर, कंट्रोल ए, and this is subcategory wise sales. Okay, this is customer wise sales. Yeah, top 10 customers, top 10 customers. What is this? This is state wise sales. Control A, state wise sales, like this. ठीक है, और इसको हम लोग सेंटर पे ले आते हैं। टाइटल, लेट्स ब्रिंग द टाइटल टू सेंटर, 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 और ये कुछ ऐसा बैकग्राउंड। ठीक है, एंड लेट्स बोल्ड इट ऑल्सो, बोल्ड, बोल्ड। ठीक है, तो ठीक है, तो अजहर एक आइडिया लग रहा है, सुरेंद्र एक आइडिया लग रहा है इसका, बीआई का, जो भी मैं बना रहा हूँ अभी। Yes, yes. ठीक है ना, Yes, सिर्फ sir. मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, और मैं आपको बस क्लियर करना चाहता हूँ बार बार कि रियल क्लास Hmm. ऐसे नहीं होगी सुरेंद्र, अजहर। रियल क्लास में हम लोग बहुत आराम से स्लोली जाने वाले हैं। मैं एक छोटी सी चीज करूंगा, फिर उसी के बाद आप वो चीज आप करोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी डेमो है तो हम लोग इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको वही चीज बार बार क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, चलो, तो लेट्स गिव अ बॉर्डर। इसको भी हम बॉर्डर देते हैं। हम लोग जाते हैं जनरल में, अफेक्ट्स में, अफेक्ट्स में कुछ बॉर्डर देते हैं, विजुअल बॉर्डर। ये आ गया, ये आ गया। लेकिन अभी ना कलर मजेदार हम लोग लेते हैं ना, मजेदार कलर नहीं है। तो देखो, अगर मैं कुछ बैकग्राउंड के कलर देना चाहता हूँ, इसके बैकग्राउंड के कलर, यहाँ पे अगर मैं अफेक्ट्स में जाऊँ बैकग्राउंड कलर के लिए, लेट्स गो टू अफेक्ट्स एंड चूज सम बैकग्राउंड कलर हियर, बैकग्राउंड कलर। बट द बैकग्राउंड कलर, द कलर्स आर बहुत ही बेसिक लेवल के कलर्स है। करेक्ट, सो आई वांट सम गुड कलर्स। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टू इंटरनेट। आपको जो भी कलर पिक करना है पिक कर लो। आप यहाँ पे जाओ, आप बोलो मुझे ना कुछ रेड कलर का शेड दे दो, रेड कलर शेड लिखो, शेड। So there are n number of websites. From any of the website you can pick it. So my favorite is, one of them is this one, HTML colors. आप इसको पिक करो। ठीक है, और मैं बोलता हूँ यार मैं कलर ना यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से। तो लेट से मुझे कुछ ये ब्लू कलर चाहिए, ब्लू, ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर कहाँ पे चाहिए अपने को, बैकग्राउंड में चाहिए, बैकग्राउंड। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला कोड। एंड फॉर दिस चार्ट इन द बैकग्राउंड आई वांट सम कलर। ब्लू से अच्छा ग्रे रहेगा, ग्रे या येलो देख ले, कोई लाइट येलो, ये पिक कर लेते हैं। और कुछ ये लाइट येलो, ये वाला ट्राई करते हैं, देखते हैं जो भी सही लगे। तो यहाँ से ये ट्राई किया, कॉपी किया ये वाला, यहाँ पे आ गए अफेक्ट्स में बैकग्राउंड, मोर कलर, और ये पेस्ट कर दिया। तो ये एक कलर हो गया। ठीक है, इसमें कोई कलर, इसमें भी कोई अच्छा सा दूसरा कलर कर लेता है, ऑरेंज कर लेते हैं, ऑरेंज। मैं कुछ भी ऐसे नॉर्मल से कलर कर रहा हूँ, या यहाँ पे या ये वाला कलर करते हैं, ब्लू वाला। ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ पे गए बैकग्राउंड कलर, और कुछ बैकग्राउंड। ठीक है, ये बैकग्राउंड हमने किया। यहाँ पे भी कुछ कलर कर लेते हैं, ग्रे कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, ऊपर होगा ग्रे। हाँ, ये रहा ग्रे कलर, ग्रे कलर चूज किया। so let's copy some light gray color, so let's copy this and give gray color here। हम यहाँ पे जाते हैं, let's go more color, gray color। ठीक है, this is okay। इसके कुछ टाइटल को भी चेंज कर सकते हैं, टाइटल के कलर को, टाइटल के कलर को लेट्स गिव सम ऑरेंज कलर। ठीक है, मैं कुछ भी कलर दे रहा हूँ यहाँ पे टीम, जो भी समझ में आ रहा है फिलहाल के लिए। लेकिन लास्ट में क्रिएटिविटी का काम तो लास्ट में है, जो फॉर्मेटिंग का काम है वो तो लास्ट में होगा। तो अभी फिलहाल मैं कुछ भी कलर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या देता हूँ मैं यहाँ पे, कोई सा भी। ठीक है, पहले मैं ये दे देता हूँ, ये कॉपी किया, बार के कलर ये कर देता ना, अंदर के बार के। तो इसको सेलेक्ट किया, और बार कलर क्या, कॉलम्स, दिस इज कॉल्ड कॉलम्स। तो आप कॉलम्स में जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ कॉलम में, ये कलर चेंज करो, बोलो मुझे ये कलर चाहिए, ये। ठीक है, ये वाला भी आप क्या करो, ये सेलेक्ट कर लो, कॉलम में आई विल से आई वांट दिस कलर, दिस कलर।
यहाँ पे भी कुछ ऐसा कर लो, ये वाला कलर दे दो। लेट्स सेलेक्ट दिस एंड गिव दिस कलर टीम, हियर आल्सो गिव दिस कलर लाइक दिस। चलो एक छोटा सा बना लिया व्यू। अब अपने को ना ऊपर एक टाइटल चाहिए, टाइटल, टाइटल। तो लेट्स गो टू इंसर्ट, वी विल हैव अ टाइटल हियर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ शेप्स में जाता हूँ और एक टाइटल दे देता हूँ, टाइटल। ठीक है, यहाँ पे गए और एक टाइटल दे दिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसा कर लेते हैं हम लोग और इसमें लिख देते हैं हम लोग क्या, स्टाइल, and here I'll go to text. So where we have to go, we will see in the class, we'll document clearly. तो यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं ये है सपोज ABC डैशबोर्ड, ऐसा है। इसको बड़ा करते हैं टाइटल को, लेट्स से 24। इसको बोल्ड कर देते हैं, इसको सेंटर पे ले आते हैं, सेंटर सेंटर सेंटर, सेंटर तो है पहले से। इसको कुछ बैकग्राउंड कलर कर दें, ये वाला नहीं है इसको, ठीक है बोल्ड तो कर देते हैं, बोल्ड। कुछ ऐसा दिख रहा है, एबीसी डैशबोर्ड ऐसा दिख रहा है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये डैशबोर्ड दिख रहा है, एबीसी डैशबोर्ड। और एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो ऐसे, ठीक है चलेगा। अभी मैं कोई डिजाइनिंग कर नहीं रहा हूँ फिलहाल। अभी अभी नेक्स्ट काम क्या करें, हमने टाइटल दे दिया, हमने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये। अभी देखो एक और काम करते हैं, ये वाला, ये जो टूल टिप है ना, टूल टिप पेज, ये मजा नहीं आ रहा। जैसे टेक्नोलॉजी का ये दिख रहा है, आई वॉन्ट इंस्टेड ऑफ दिस टूल टिप, दिस ग्रे कलर थिंग इज कॉल्ड टूल टिप टीम, ये ग्रे कलर। So instead of this gray color tooltip, I want a chart here. एक chart चाहिए अपने को। So what I'll do, मैं इसको close करता हूँ। I will have a chart here, chart. So what I'll say, I want a drill down information. यहाँ पे मुझे chart चाहिए, tooltip, 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 ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, हम लोग यहाँ एक व्यू बनाते हैं हम लोग क्विकली। मैं जाता हूँ, टेबल बना लेते हैं हम लोग, टेबल, टेबल या चार्ट बना लेते हैं ना कोई सा भी। तो हम लोग बोल देते हैं आप क्या करो, ये चार्ट तो बन गया है, ये चार्ट बन गया है। Here we are not able to see in which region what is happening, what is happening in regions, ठीक है, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज में किस रीजन में कितनी सेल हुई है वो नहीं दिख रही है। तो लेट्स मेक अ चार्ट हियर। हम यहाँ पे बोल देते हैं रीजन वाइज एक समरी दिखाओ, रीजन वाइज सेल्स आप दिखा दो, रीजन वाइज आप क्या करो, सेल्स दिखा दो, ये ठीक है। इस चार्ट को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ये इन्हीं में से कोई फॉर्मेटिंग दे देते हैं। लेट्स गिव दिस फॉर्मेटिंग, ये वाली। आई विल गो टू होम, आई विल क्लिक दिस, I will just go here, I will click this. So quickly I have given that formatting. अरे वो चले गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गए, यहाँ पे हम लोग गए वापस, चार्ट को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर, यहाँ पे हम आते हैं और इसको ये वाला फॉर्मेटिंग दे देते हैं, ये वाला, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ ये जो पेज है ना, ये नॉर्मल पेज नहीं है, ये नॉर्मल पेज नहीं है, टूल टिप पेज है, टूल टिप। तो आप क्या करो, यहाँ आओ, आप बोलो यहाँ पे ये पेज इंफॉर्मेशन, दिस इज अ टूल टिप पेज, अलाउ एज टूल टिप, टूल टिप की तरह अलाउ करो। साथ में क्या करो, यहाँ पे जाओ कैनवस सेटिंग्स और यहाँ पे टूल टिप बोल दो, टूल टिप। आपने ऐसा बोल दिया, अब ये व्यू ऐसा दिख रहा है, ऐसा। अब ये व्यू को ना, चार्ट को थोड़ा सही करता हूँ मैं, आई एम गोइंग, ठीक है, चार्ट को हमने थोड़ा सही किया और मैंने विड्थ थोड़ी कम कर दी चार्ट की, मैंने हाइट कम कर दी इसकी, चार्ट की, चार्ट की हाइट में कर देता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है अभी। यहाँ पे ऐसा, ऐसा। ये जो है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, टाइटल सही कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं, टाइटल, टाइटल दिस इज रीजन वाइज सेल्स, कंट्रोल ए, रीजन वाइज सेल्स। तो हमने कुछ ऐसा बना दिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं रीजन वाइज सेल्स को, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया। ठीक, दिस इज द टूल टिप नाउ। so what I want here in the main page, I want that page. If I'll click here, that should show me here, that should show me here. So what I'll do, I'll just select this, I will just go here, here in the tooltip portion I will go, I'll just go to general, मैं टूल टिप में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ यार वो एक टूल टिप का पेज बनाया साइड में, वो लेके आ जाओ, रिपोर्ट पेज, और वो उसका नाम टूल टिप है, टूल टिप। तो पेज को, उस वाले पेज को रिपोर्ट करो, आप जाओ उस पेज को रिपोर्ट करो। तो देखो इतना छोटा सा काम करने से क्या होगा, आप ऑफिस सप्लाईज पे क्लिक करो तो देखो पूरा व्यू दिखेगा, दिख रहा है एक अच्छा सा चार्ट, सही दिख रहा है ना थोड़ा सा।
कि देखो मुझे 741 इसका है, तो 741 का ब्रेकअप चाहिए रीजन वाइज, तो ब्रेकअप मिल जाएगा आपको। यू आर गेटिंग टीम? रीजन वाइज ब्रेकअप कैसे मिल रहा है अपने को, है ना? कितना इजी स्टेप। यस। अदरवाइज ये प्रोग्रामिंग में करना पड़े ना, वीबीए में तो हालत खराब हो जाएगी ये काम करने में। कम से कम 2-3 पेज के कोड होंगे इसके पीछे, है ना? तो ये देखो ऑटोमेटिक ये सीधा कितना सिंपली ये हो गया काम, कितना सिंपल काम हो गया ये। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक कैलेंडर टेबल बना लेते हैं। कैलेंडर टेबल, तो चलो हमने ये व्यू बनाया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक और, इस एप्लीकेशन का एक और फीचर, बहुत अच्छा फीचर है वो। सपोज मुझे ना इसका ब्रेकअप देखना है सीन मिलर का। जैसे मुझे ऐसे नहीं देखना, टूल टिप में नहीं देखना, मुझे चाहिए कि सीन मिलर का पूरा डेटा आ जाए अपने पास, डेटा। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एक और नया पेज, मैं बोल देता हूँ व्हाट, शो मी डिटेल्स, डिटेल्स करके नाम दे देता हूँ। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्विकली क्रिएट अ टेबल हियर। मैं एक टेबल बना लेता हूँ। तो डिटेल मीन्स I will just keep everything here. What I'll keep? Customer name I'll keep. After that I'll keep product ID. What is a product ID? Product ID क्या है? Product का नाम क्या है? What is the name of product? What is the total sales? What is the total sales? I want all these details. ठीक है, मुझे सारी डिटेल लगने वाली है। All this detail I want. Not like this. I want a this thing. Layout. I want a this view. What? Tabular view I want. Tabular view. और मुझे ये नहीं चाहिए जो रो टोटल्स है ना, यू कैन सी दिस रो टोटल, आई डोंट वांट रो टोटल। तो व्हाट आई लो, कॉलम टोटल को भी ऑफ करो, रो टोटल को भी ऑफ करो, ऐसा कर लो। तो मुझे इसकी कुछ अच्छी डिजाइनिंग चाहिए, डिजाइनिंग बेकार है। चलो कर लेते हैं फटाफट। हम जाते हैं ग्रिड में, लेट्स लेट्स व्हाट विल डू, ऑप्शंस पे जाते हैं, थोड़ा सा साइज बड़ी कर देते हैं। ऑप्शंस, लेट्स इंक्रीज द फॉन्ट साइज किया। ठीक है, लेट्स गो हियर टीम, layout. So we will say I don't want anything. I want a simple formatting. None कर दो। इसके कॉलम हेडर्स पे आ जाओ। कॉलम हेडर्स, लेट्स गो टू द कॉलम हेडर्स टीम। इन कॉलम हेडर्स सेंटर एंड जस्ट कीप द फॉन्ट साइज ऐसे, ये फॉन्ट का ये कलर बोल्ड, बोल्ड एंड गिव सम बैकग्राउंड, सम नाइस बैकग्राउंड। तो कुछ ऐसा ही बैकग्राउंड ले आता है, ये ऐसा ले आता है, ऐसा बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये कुछ एक व्यू हो गया। व्यू ये अपने को सम ऑफ सेल्स दिख रहा है ना, तो वी डोंट वांट सम ऑफ सेल्स, वी ओनली वांट सेल्स। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ क्विकली, मैंने चेंज कर दिया और मैंने कुछ समझाया भी नहीं आपको। ठीक है, बस मैं देखे कर किए जा रहा हूँ सेल्स। तो ये एक चार्ट बन गया टीम। तो व्हाट आई वांट सपोज आई एम क्लिकिंग दिस सीन मिलर, तो आई वांट टू सी ऑल द ट्रांजेक्शन फॉर सीन मिलर। कैसे देखेंगे सीन मिलर के ट्रांजेक्शन? तो आप क्या करो, जैसे ही सीन मिलर पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, तो आपको ये वाला व्यू दिखना चाहिए, बट ओनली फॉर सीन मिलर। सीन मिलर, यहाँ पे कार्ड भी बना देते हैं कि सीन मिलर का टोटल कितना है वो भी बना बता दो। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे कार्ड रख लेते हैं टॉप पे। लेट्स कीप अ कार्ड एट द टॉप। ठीक है, हियर आई जस्ट हैव सेल्स टीम, मैं सेल्स रख लेता हूँ, सेल्स। सेल्स को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉल आउट वैल्यू छोटी कर देते हैं इसकी, कॉल आउट वैल्यू 22। एंड लेट्स मेक दिस टाइटल, ये क्या है, कैटेगरी, कैटेगरी है ना, कैटेगरी लेबल। तो कैटेगरी लेबल हम इसको, ठीक है, कैटेगरी लेबल ऐसा है ना, ठीक है। लेट्स मेक इट एज सेल्स। यहाँ पे चलते हैं, सम ऑफ सेल्स दिख रहा है ना, ये हटा देते हैं और लेट्स मेक इट एज सेल्स, कुछ ऐसा व्यू। लेकिन ये डिस्प्ले ये पूरा दिखना है अपने को। तो गो टू कॉल आउट वैल्यू, डिस्प्ले यूनिट्स नन, लाइक दिस। एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर भी देना है तो दे दो। लेट्स गो टू जनरल, लेट्स गो टू इफेक्ट्स, इन इफेक्ट्स आई विल गिव सम बैकग्राउंड कलर लाइक दिस। तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, व्हाट आई डू, लेट्स गिव सम बॉर्डर्स हियर। हम चलते हैं जल्दी से क्विकली, अफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर का कलर भी चेंज कर देता हूँ, मजा नहीं आ रहा था उसमें। ये वाला कलर, इसमें भी क्या किया, लेट्स गो टू विजुअल बॉर्डर ऑन, आई विल गिव सम कलर हियर। ओके, आई विल गिव सम कलर लाइक दिस। परफेक्ट। अब विजुअल बॉर्डर को ना थोड़ा सा ये राउंड कॉर्नर कर देता हूँ, तो राउंड कॉर्नर क्या कुछ अच्छा दिखेगा अपने को। इसको 20 कर देता हूँ, 20।
तो देखो राउंड कॉर्नर में ऐसा दिख रहा है, इसको भी क्या कर देते हैं 20 कर देते हैं 20, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा थोड़ा राउंड हो जाएगा कॉर्नर्स। ठीक है, ये कॉर्नर थोड़े राउंड हो जाएंगे, थोड़ा अच्छा दिखेगा व्यू। तो टीम, टिल नाउ आई हैव नॉट डन एनी फॉर्मेटिंग, ओके। इन दिस डेमो आई हैव वेरी वेरी बेसिक थिंग्स, बट हम रियल क्लास में बहुत अच्छी अच्छी फॉर्मेटिंग सीखेंगे क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। इंफॉर्मेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंफॉर्मेशन, but little bit formatting also we will see at a very advanced level, that thing also we will see, okay। चलो हम आगे देखेंगे इसको, लेकिन फिलहाल क्या, ये व्यू, what I want this page, ये पेज जो है ना मुझे यहाँ पे चाहिए, ये सेल्स, ये सेल्स, so this sales I want, so what I'll do, simply I'll just drag this sales here, sales here. So what is happening, sales, one column is sales, here also one, some of the column is sales. So what will happen now, suppose wherever you have drag sales, यहाँ पे sales भी है ना अपना, sales है ना sales, तो अगर मुझे सीन मिलर को देखना है, आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, आप ड्रिल थ्रू करो और सीन मिलर का ब्रेकअप देख लो। तो दिस इज द ब्रेकअप फॉर सीन मिलर, दिख रहा है आपको? अगर डेटा की जरूरत है तो डेटा भी देख सकते हो। यस नो, है अच्छा फीचर टीम, अच्छा फीचर है ये भी, अगर मुझे कंप्लीट डेटा देखना है तो। Yes, yes, करेक्ट, सपोज मुझे स्टोरेज का yes. कंप्लीट डेटा देखना है, स्टोरेज, स्टोरेज में सीन मिलर का क्या, स्टोरेज में क्या हाल है कस्टमर्स का, सो ड्रिल थ्रू करो और शो मी डिटेल्स दिखाओ, तो देखो पूरी डिटेल्स दिखेगी आपको। कितना है, 223 का ही था ना ब्रेकअप, चाहे तो आप चेक कर लो, ये देखो 223 का ब्रेकअप होगा स्टोरेज, ये अब ये 1000 में दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, फर्नीचर को कर लो राइट क्लिक, वो तो यहाँ पे भी अच्छा एक दिख रहा है, टूल टिप तो दिख ही रहा है। लेट्स डू लाइक लाइक दिस, राइट क्लिक, ड्रिल थ्रू, show me details, so like this it is showing you the details। 719 का ब्रेकअप दिख रहा है आपको, आपको वापस जाना है, वापस चले जाओ, गो बैक, और 719 का इसका ब्रेकअप दिख रहा था अपने को, क्लियर। ठीक है, तो एक छोटा सा हमने व्यू, एक क्विकली एक डैशबोर्ड बना लिया हमने। इस डैशबोर्ड को थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं। सपोज मैं बाहर से एक ना एक आइकन ले आता हूँ, आइकन, तो मैं बोल देता हूँ बाहर जाओ, बोलता हूँ यार एक अच्छा सा आइकन दे दो, मजा आएगा। तो आप क्या दे दो, डैशबोर्ड आइकन, कुछ ऐसा लिख देते हैं, डैशबोर्ड आइकन कार्टून, कुछ ऐसा कार्टून टाइप का आइकन उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं इमेजेस, इमेजेस, सो व्हाट आई डू, ये डैशबोर्ड है ना अपना, तो कोई सा भी अच्छा आइकन दिख रहा है क्या अपने को, ये उठा लेता हूँ, ये वाला। इसमें तो मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ अच्छा सा और अच्छा सा, ये मजा नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ अच्छा सा आइकन उठाते हैं हम लोग, यहाँ पे गए और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक लग रहा है, ऐसे ही कुछ ये वाला उठा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं स्नाइपिंग, स्नाइपिंग टूल, आई एम गोइंग टू स्नाइपिंग टूल, न्यू किया, और यहाँ से हम लोग स्नाइपिंग उठा लेते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं कंट्रोल एस, सेव कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं हम लोग अपनी फाइल में, यहाँ पे, और ये हम बोल देते हैं यहाँ पे पेस्ट, आई विल से दिस इज आइकन 001, और ये हमारा क्या है, आइकन है, आइकन, सेव कर लेते हैं। ये आइकन को अपने डैशबोर्ड में ले आते हैं, थोड़ा सुंदर दिखेगा। इंसर्ट करो, लेट्स गो टू इमेज, दिस इज द आइकन, तो ये आइकन को रख देते हैं साइड में, थोड़ा सा अपना डैशबोर्ड अच्छा दिखेगा, यहाँ पे रख लेते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आइकन ऐसा रख लेते हैं, ऐसा थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं डैशबोर्ड की। लेट्स गो हियर क्विकली, क्विकली एंड लेट्स गो हियर, और यहाँ पे एफेक्ट्स, ये यही कर लेते हैं, विजुअल बॉर्डर तो है, बट विजुअल बॉर्डर आई डोंट वांट दिस कलर, आई वांट दिस कलर, एंड लेट्स मेक इट राउंडेड, 15 कर दो। यहाँ भी क्या करो, इसको 15 कर दो, 15, लेट्स मेक इट दिस कलर, तो थोड़ा सा व्यू अच्छा दिखेगा अपने को, ये किया। ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया हमने, सेलेक्ट किया और राउंडेड कॉर्नर्स, so let's make it 15, let's do like this, let's do like this here also,
let's make it this color, let's make it this color, and let's change it to 15 like this. ठीक है, अच्छा रहता अगर पीछे कोई बैकग्राउंड दिख रहा होता ना, अच्छा वाला बैकग्राउंड, तो मजा आता। तो एक काम करते हैं, पीछे एक बैकग्राउंड भी ले आते हैं बैकग्राउंड। तो क्विकली एक छोटा सा काम कर लेते हैं, लेट्स एंड थ्रू पीपीटी वी विल टेक द हेल्प। जो पीपीटी है ना, इसी में एक काम करते हैं, नीचे एक स्लाइड बना लेते हैं नीचे, और क्विकली हम लोग क्या करते हैं, ये चीज एक अच्छा सा बैकग्राउंड भी दे देते हैं। यहाँ पे गए, क्योंकि वहां पे ना कलर्स अच्छे नहीं है, तो यू विल लर्न ऑल दिस टेक्निक कि पीपीटी वगैरह को इंक्लूड करो, अपना डिजाइन अच्छा करने के लिए ना पीपीटी को इंक्लूड करो। तो यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट बैकग्राउंड, लेट्स गिव सम ग्रेडियंट। तो कुछ ऐसा बैकग्राउंड दे देते हैं फिलहाल के लिए, बहुत बेसिक। सो लेट्स सेव दिस, कंट्रोल एस, आई एम जस्ट सेविंग दिस। ठीक है, मैं सेव कर लेता हूँ इसको, और मैं बोल देता हूँ कि ये ना मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ, मेन समरी बैकग्राउंड को बोल देता हूँ 001 मेन समरी बैकग्राउंड। ठीक है, तो और इसको कुछ जेपीजी जेपीजी में या एसवीजी में सेव कर लेता हूँ, एसवीजी, सेव इट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल गेट द बैकग्राउंड हियर। तो आप जाओ यहाँ पे, आप बोलो कैनवस बैकग्राउंड चाहिए, कैनवस बैकग्राउंड, जस्ट गो हियर एंड दिस इज मेन समरी बैकग्राउंड। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंसी हटा दो, आप ऐसा कर दो। तो देखो कुछ बैकग्राउंड दिख रहा है, दिख रहा है पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है। ये कलर बहुत ही बेकार दिख रहा है, ये कलर को हम सही करेंगे और फाइनल टच देते हैं इसको। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे स्टाइल, स्टाइल वी आर गोइंग हियर एंड सम ये वाला कलर, नहीं मजा नहीं आ रहा। ये वाला ठीक है, ये ठीक है। बस टेक्स्ट को ना ब्लैक कर देते हैं, टेक्स्ट को क्या किया हमने, ब्लैक कलर। ठीक है, एक व्यू हमने बना लिया। तो एक क्विकली टीम, एक छोटा सा हमने डैशबोर्ड बनाया। तो आपको होपफुली आइडिया आ गया होगा हम लोग क्या करने वाले हैं पावर बीआई में। और एन नंबर ऑफ, ये तो सिंपल सा काम किया टीम। अभी बैकग्राउंड में मेन काम तो अभी हमें क्या करना है, तो इम्पोर्टेंट थिंग टीम हियर, इम्पोर्टेंट थिंग। The main thing is Power Query portion will be 40% dependency on Power Query because data transformation. So Power Query will be covering 40% क्योंकि उसी का बहुत बड़ा contribution है. Then 40% will be targeting on DAX. DAX. ठीक है? 20% will be this visual. So right now I've shown you only 20%. Let's see what is DAX. What is DAX? So there will be some very important things will be required. ठीक है, यानी हमारे पास कॉलम्स नहीं है, हमें कॉलम्स चाहिए। तो लेट्स से सपोज आई वांट अ टेबल, so what I want, so I want a table here. So what I'll do, I'll go to home, here I'll quickly go here, यहाँ पे आप चले जाओ, या फिर राइट क्लिक कर लो कहीं पे भी, राइट क्लिक एंड न्यू टेबल, हियर क्लिक न्यू टेबल। Suppose now I want some calendar table team, I want some calendar table. So what I'll do, tbl cal, so I'll say give me calendar auto. So whatever you are doing this thing team, in the front end Power BI, these are called DAX. DAX आप कर रहे हो, और DAX also you will learn variable concepts here. यानी आप क्या करोगे, मुझे, हाँ एक सेकेंड हो, I'll just click here new table, so the formula, तो आप क्या लिखोगे ऐसे, आप बोलो tbl cal, this is variable cal like this, and return it, please return it, return cal. So just click this, click it, and here you can see a table is here now, a table is here. Now suppose I want year also here. So what I'll do, I will say add a year column, where YR, add column, table, table is calendar table, this one, name, name is YR, and here expression is year, it will come from this thing, close, close, तो year return करो, so YR is also coming now, YR is also coming, take it, so year is here now. तो क्या दिक्कत हो गई यहाँ पे, ये क्लोज नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ, तो ईयर इज ऑल्सो हियर नाउ। सपोज आई वांट मंथ्स ऑल्सो, तो वेयर mth is equal to add column, and table name is this one, name, name is m,
or month. Here expression is format. So I'm not like explaining you anything. Format date, and what date we want? MMM hyphen YY close like this, and written MTH like this. तो यहाँ पे क्लिक करो, टिक करो, और ये MTH आ रहा है. Okay, so like this we will see wonderful DAX team. So this is the power of this. This is the power of Power BI. तो ये जो DAX मैं बोल रहा हूँ ना, DAX, so the weightage of DAX will be 40%. Weightage of Power Query will be 40%. Means home transfer. So this portion is 40%. Rest all this 20% which we covered. ये जो है ना विजुअल्स बनाना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बना ले ये काम. आप तो बड़े इजी बहुत अच्छे विजुअल्स बनाओगे. But behind that, the data is important, team. Data. So two things are important: Power Query and this DAX are important. ये दो अच्छी चीजें हैं, तो बाकी आप तो ये कभी भी कर लोगे. ये सब तो बच्चों वाला काम है. फिर आप तो इजीली कर लोगे ये काम. ठीक है. तो होपफुली एक पावर बीआई का एक आइडिया आया टीम आपको सभी को. मुझे कंफर्म करो सभी को आइडिया आया. Yes. और समझ में तो कुछ नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ समझाया नहीं है. करेक्ट जी? जो नथिंग you have understood nothing, right? Because I have not explained anything. Yeah. Chijo is my Power Query student also. He is doing Power Query, and that batch we have already almost ended. This week this will be our final session, right, Jijo? Yeah. Final session, correct. तो मैं एक काम करता हूँ ना, ये डेमो का सेव कर लेता हूँ. सेम एक्सेल की तरह ट्रीट करो. दिस इज लाइक एक्सेल ओनली. तो कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस, 4 ऑप्शंस. मैं जल्दी से इसको ब्राउज करता हूँ. आई विल जस्ट ब्राउज इट. कॉपी. यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ब्राउज दिस डिवाइस, यहाँ पे जाओ, पेस्ट करो, और ये बोल दो 001 डेमो डैशबोर्ड करके नाम रख देता है. ठीक है. तो क्विकली हमने बस एक छोटा सा डैशबोर्ड बना दिया. ठीक है. तो नाउ लेट्स एनी क्वेश्चंस हियर टीम? किसी को कोई क्वेश्चंस यहाँ पे? Yes. Sir, are we covering this schedule refresh and row level security and all those things Shweta, in that will whatever? that will be the main thing, right, Shweta? So what will happen, Shweta? Right. The course will be divided into 3 parts. Okay. Mm-hmm. So the course will be divided into 3 parts. One is desktop application. Okay, where you will create everything. After that, you will publish it to people also, right? बहुत सारे लोगों को दिखना भी चाहिए था ना आपने क्या बनाया. So second thing is services. So in services only all that thing is coming, like row level security, like schedule refresh, okay, and gateways, Right. many things. ठीक है. ये सारी चीजें यहाँ पे होगी. Now third part, this is first part, this is second part. Okay, this is first part, this is second part. Third part will be exam preparation. Okay, in exam preparation I'll be covering 45 questions in front of you कि how the exam comes Power BI. तो मेरा तो बहुत पहले सर्टिफिकेशन हो गया टीम. 4 साल पहले मैंने सर्टिफाई किया था Power BI में अपने को. ठीक है. तो एक एग्जाम भी होता है इसका. अगर आप एग्जाम भी देना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट वाले एग्जाम लेते हैं इसका. कुछ 5600 दे चार्ज, और उसके एक एग्जाम होता है. उसको क्लियर करोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो चलता है एग्जाम में. सो दैट एग्जाम इज कॉल्ड PL300 बोलते हैं उसको. ठीक है. जब मैंने दिया था ना तब वो DA100 था. DA100 अब नाम चेंज कर दिया इसका, अब PL300 हो गया. And now one fourth thing we will be covering here, we will do one project also. Project together. So our course will be divided into all these things. ठीक है. तो ये रहने वाला है श्वेता. सारा एडवांस ट्रेनिंग रहने वाली है ना, तो कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो छूटेगी आपने. राइट. और एक मुझे पूछना था कि अगर हमें कोई रिपोर्ट मतलब भेजते हैं तो ये कवर होगा कि हमें वो रिपोर्ट स्टडी करना है,
तो वो हम यहाँ पे सीख सकते हैं क्या? बिकॉज आई डोंट नो, मतलब मेरे टीम में ऐसे काम आते हैं। तो ये कर सकते हैं क्या हम ये कोर्स में कवर, मतलब मतलब स्टडी करना मुझे मतलब क्या बोल रहे हो? स्टडी करना इन द सेंस, अगर कोई रिपोर्ट बन के आया है, मुझे उसमें चेंजेस करने हैं, तो पहले चेंजेस करने से पहले मुझे उस रिपोर्ट को एडिट करना है या स्टडी करना है, काइंड ऑफ। वो तो इजी है, बस आपको एक्सेस चाहिए श्वेता उसमें। जैसे मैंने आपको राइट, राइट, आपको अगर मैंने एडमिन बनाया तो आप भी वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग राइट, चीजें राइट, होती है। अगर मैंने वर्क स्पेस पे आपको एडमिन बना दिया तो आप बना सकते हो, चेंजेस कर सकते हो रिपोर्ट में। ठीक है, ओके, 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 वो सारी ठीक है, चीजें हम देख सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं होगा। वो तो आपको एक्सेस पे डिपेंड करता ठीक, है, अलग अलग एक्सेस होता है ना, एडमिन हो गया, व्यूअर हो गया, राइट, कंट्रीब्यूटर हो गया, मेंबर हो ओके। मेंबर हो गया, और जैसे भी हो। जो लोग जिनके पास ये सर्विसेज का एक्सेस नहीं है, तो जैसे 26 सर के टाइम पे हमें आईडीज प्रोवाइड किए गए थे। अभी तो मेरे पास है, बट मतलब मुझे नहीं पता ये एक्सेस मेरे पास कितने दिन रहेगा पावर बीआई का, बिकॉज आई एम ऑन लीव। हाँ, कोई तो नहीं, मतलब आप ऐसा, मैं आपको आईडी दे दूंगा, लेकिन उस आईडी ना लिमिटेशन है थोड़ी सी। आपको मैं एक ओके, आईडी क्रिएट करके दे दूंगा, लेकिन उसमें क्या होगा, वर्क स्पेस ऐड नहीं कर पाओगे, आप थोड़ी बहुत चीजें कर पाओगे लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्री है ना वो। हाँ, 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 करेक्ट, तो वो मैं आईडी मैं भी हाँ, आपको दे राइट, दूंगा, यहाँ पे भी आपको आईडी मिलेगी। ठीक है, तो श्वेता ये भी जो ओके, भी चीजें होने वाली ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो बस ये म्यूट पर डाल देना श्वेता, एक सेकंड। हाँ, तो जो भी चीजें होने वाली ना श्वेता, वो हम लोग आप ही लोग करोगे मेरे साथ। ऐसा नहीं होगा कि मैं वन साइडेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारी चीजें नंबर वन एग्जांपल से हम लोग हर चीज साथ में करने वाले हैं। जैसे ही आपका हो जाएगा, आपको आ जाएगा, तो हम आगे मूव करेंगे। और किसी भी टाइम पे कोई भी एग्जांपल आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी एग्जांपल में आपको डाउट है, आप मुझसे पूछो, क्लियर करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जांपल कवर कर लिया फिर से क्यों बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी कोई सा भी एग्जांपल पूछो, ठीक है, आपके ऊपर है। तो आपको जितने अच्छे से सीखेंगे हम लोग यहाँ पे चीजों को। क्लियर? श्योर, श्योर। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स, पावर क्वेरी का जो आपने कोर्स बताया, उसका ड्यूरेशन क्या है? देखो, उसका ड्यूरेशन ना वो वीकेंड में बैच है, तो वीकेंड में बैच है, 4 मंथ्स, 4.5 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, ओके, ओके, वो बैच 14 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। वो बैच भी मेरा ही बैच है, 14 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, और मॉर्निंग 8 to 12:30 इज द टाइमिंग। तो होता क्या है, हमें पता है वो पावर क्वेरी ना एक अलग से श्वेता वही है कि हम लोग पावर बीआई सीख लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन एडवांस लेवल का अपने को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। करेक्ट, अभी राइट, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो करेंगे, डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से होंगे ना पूजा, श्वेता, यहाँ पे ऊपर के ऑप्शन से होंगे, देखो यहाँ पे, ये इससे आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हो यहाँ से। और एक दूसरी बात क्या होगी, आप इस लैंग्वेज को सीख रहे हो, लैंग्वेज को। तो ये जो कंप्लीट लैंग्वेज सीखने में भी आपको 4-5 महीने जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड पावर क्वेरी। तो डेफिनेटली लैंग्वेज के बेनिफिट तो होने ही वाले हैं कुछ ना कुछ। आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो दैट इज एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसका जो टाइमिंग रहने वाला है ना बैच का, मैं एक सेकंड बताता हूँ आपको। दोनों बैचेस मैं आपको क्लियर करता हूँ। एफसीकेएस टेक्नोलॉजीज, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं शेड्यूल। शेड्यूल में मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे व्यू शेड्यूल करता हूँ। तो देखो, बैच वो मेरा ही रहने वाला है, आपको दिख रहा है ये वाला, दिस वन, ये वाला। तो सैटरडे को 8 to 12:30 इसका टाइमिंग रहेगा, सैटरडे 8 to 12:30। ठीक, 12:30 के बाद अगेन मेरा एक बैच आएगा, जो कि होगा पाइथन का बैच, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये सब फ्यूचर में आप करना, डेफिनेटली अच्छी अच्छी चीजें हैं। फिलहाल क्या करो आप, ये भी आप देख सकते हो, एक पावर क्वेरी भी थी, दोनों चीजें आप साइड बाय साइड भी चला सकते हो, क्योंकि दोनों रिलेटेड है। इसलिए अगर आपको करना है ओके, तो आप ये भी साइड बाय साइड कर सकते हो, पावर बीआई भी, तो आपका पावर बीआई जो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा फिर श्वेता। राइट, राइट। तो आप देख सकते ये इसमें एक और है, लाइक पेजिनेटेड रिपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रीमियम पावर बीआई प्रीमियम हो, प्रो में भी मिल जाते हैं ना, एप्लीकेशंस। प्रो में भी बन पेजिनेटेड रिपोर्ट, पेजिनेटेड रिपोर्ट। ओके, सो आर वी कवरिंग दैट आल्सो, राइट? श्वेता, पेजिनेटेड रिपोर्ट वी हैव नॉट कवर्ड टिल नाउ, लेकिन आपको चाहिए होगा तो आप देख लेंगे उसमें। ओके, ठीक है इन सर, आवर ठीक है, कोर्स या। वी हैव पेजिनेटेड रिपोर्ट, वी कैन डू इट।
Okay, sure. And anything which you're feeling, right, you are not aware about that, you just bring it, we will see it here. आपको लग रहा है ना Sure. मैं मुझे नहीं आ रहा है, मुझे ये चीज सिखाओ, बस कुछ अगर मुझे ही आ रहा है ना, लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो ना, आप यहाँ पे क्लास में पूछ लो फिर आप। ठीक है सर। या हेलो सर, पावर बीआई में आप क्या क्या कवर करने वाले होते हो? मतलब डेटा विजुअलाइजेशन, पावर क्वेरी। तो पावर बीआई में क्या क्या कवर करने वाला है, कोई 4 पार्ट में पूछ लूंगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में मतलब सारे विजुअल्स, ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे डैक्स, ठीक है, ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे रिलेशनशिप, जो भी देखना है सारी चीजें रिलेशनशिप में, फिर अपना का पूरा जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है सब कुछ, मतलब ये एक बेसिक टू एडवांस लेवल रहने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। अभी डैक्स कौन कौन से कवर करेंगे हम देख लेंगे मोटे मोटे अभी। और ये सर्विसेज में क्या होगा, एक बार रिपोर्ट बन गई तो उसके बाद पब्लिश करने के बाद क्या करना है, ठीक है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो सब कवर करेंगे हम लोग, सर्विसेज। फिर थर्ड क्या, इसका जो एक एग्जाम होगा वो भी हम तैयारी करेंगे। फिर फोर्थ क्या, एक प्रोजेक्ट उठा लेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लें हम लोग, एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर लेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि ऑफिस में काम करे तो कैसे करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है सुरेंद्र, तो मैं आपके क्वेश्चन के साथ सर, इसके ऊपर जॉब मिल सकता है या पावर क्वेरी करना पड़ेगा? क्या नहीं, इसके ऊपर क्या बोलूं, जॉब मिल सकता है? या डेफिनेटली सुरेंद्र, ये ना एक पावर बीआई कर लिया ना, तो पावर बीआई नाम दिखता है, दिखता है आगे, लेकिन आपको नेक्स्ट लेवल सीखना है तो सुरेंद्र एक बार जॉब को अच्छे से करना है, वो भी चीज सीखना, पावर क्वेरी को एक्सप्लोर करना है ना, हाँ क्योंकि हाँ। इसमें पावर क्वेरी तो हम कर ही रहा था, लेकिन आपको क्या है, अभी दो तरह के लोग हैं ना, कि एक बहुत ही खतरनाक नॉलेज है एक इंसान को उसी पावर बीआई प्रोफाइल में, और एक को एवरेज नॉलेज है। तो वो खतरनाक से एवरेज नॉलेज से खतरनाक बनने के लिए कुछ नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी आपको, है ना। जैसे आपका एक्सेल धमाकेदार होना चाहिए, आपको ऑटोमेशन के लिए वीबीए आना चाहिए, पावर क्वेरी आना चाहिए, पावर बीआई आता है, ठीक है, कल को आपको हो सकता है पाइथन की रिक्वायरमेंट हो, तो एक बंदा है जो मल्टीपल स्किल सेट के साथ बैठा हुआ है, और एक को पावर बीआई आता है, तो थोड़ा डिफरेंस तो क्रिएट होता ही है ना। और पावर बीआई के बेस पे तो जॉब मिलती है, अच्छी खासी जॉब मिल रही है पावर बीआई के बेसिस पे, है ना, बहुत ओपनिंग है पावर, अभी बहुत अच्छी है सुरेंद्र, अभी क्या है देखो, 2 1 साल बाद देखो, काफी अच्छे अच्छे लोग आएंगे ना मार्केट में, राइट सर। तो फिर आपको उसी उसी जगह मेंटेन करने के लिए आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। जैसे आपको पावर क्वेरी आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपना ऐप सीखना पड़ेगा, मतलब ऑटोमेट सीखना पड़ेगा, तो ये एक लेवल पे नहीं रहता ना सुरेंद्र, आपको मतलब ये सीखना है कि आपको अपना लेवल बढ़ाना है, करेक्ट। तो ये चीजें रहने वाली है, जैसे अभी एक्सेल, बस म्यूट कर डालता हूँ पर एक मिनट। देखो जैसे अभी एक्सेल एक्सेल क्या है, देखो अभी अभी कितने पैकेजेस मिलते हैं एक्सेल पे, हार्डली 3.5 लाख 4 लाख का पैकेज मिलता है, करेक्ट सुरेंद्र। राइट सर। एक टाइम पे एक्सेल, आज से 15 साल पहले ना एक्सेल भी नहीं आता था लोगों को अच्छे से, तो अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते थे एक्सेल पे। तो सेम वही पावर बीआई का हाल है, अभी बहुत अच्छे पैकेजेस है, लेकिन आने वाले टाइम पे कम होंगे, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होंगे पावर बीआई के, तब कोई नई एप्लीकेशन होगी, तो धीरे धीरे हमें एक एक करके हर एप्लीकेशन सीखनी चाहिए, है ना, काफी चीजें नई नई, हमें मल्टी मल्टी स्किल्स होना चाहिए, तभी आपको आपकी वैल्यू, करेक्ट। अगर मुझे लग रहा है कि एक का डाउनफॉल चल रहा है, तो मैं अपना प्रोफाइल चेंज कर लूंगा, मैं स्विच कर लूंगा सुरेंद्र, मैं दूसरे प्रोफाइल में जाके काम करूंगा, करेक्ट ना, नई एप्लीकेशन में काम करूंगा। यस सर। सही बात है ना श्वेता, अगर एक एप्लीकेशन नहीं चल रही तो मैं दूसरी एप्लीकेशन के साथ आगे बढ़ूंगा, करेक्ट। राइट। बस बहुत सारे स्किल सेट होंगे, ठीक है, तो वो आपको अल्टीमेट गोल आपका ये होना चाहिए, जब तक जॉब कर रहे हो ना टीम, जब तक आप कर रहे हो ना नौकरी वोकरी, तो तब तक सीखते रहना पड़ेगा नई नई चीजें, है ना, क्योंकि अभी काफी आगे भी बढ़ना है लाइफ में, तो ये सारी चीजें आपको एक नई नई चीजें आपको सीखनी है, और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है आपको, ठीक है। सो लेट्स मूव टीम अहेड, लेट्स So, यस यस। सर, प्लेसमेंट मिलेगा क्या? नहीं सुरेंद्र, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का ना बहुत बड़ा स्टूडेंट का सर्कल है, तो जहाँ भी जॉब मिलेगी, जॉब होगी ओपनिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि जॉब ओपनिंग चल रही है, तो आप इंटरव्यूज दो और जाके फिर आप क्रैक करो उसको, ठीक है। तो क्योंकि प्लेसमेंट अभी मुझे जॉब नहीं है, क्योंकि मैं बी2बी में जॉब करता था। सभी बी2बी में अभी बिजनेस कम है सर, इसीलिए ले ऑफ्स दे रहे हैं सब। हाँ, तो आप अपना एक कोई अच्छी एप्लीकेशन सीखो सुरेंद्र, और इस तरह से बस अपना एक प्रोफाइल रखो, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और आपके ना रास्ते क्लियर होंगे सुरेंद्र आगे का, अच्छा अच्छा। है ना। बी टू बी तो जरूर अपना नॉर्मल प्रोसेस भी होता है ना, बी टू बी तो हम लोग क्या कर रहे हैं,
एमआईसी एग्जीक्यूटिव वहाँ पे। हाँ मतलब कोई हम लोग कोई स्किल सेट नहीं देते खास है ना, आपको भी हम स्किल सेट देने वाले हैं अपने काम। तो ये सब स्किल सेट तो कहीं भी चल जाएगा। B2B का प्रोफाइल है, कोई ट्रैवल का प्रोफाइल है, IT का प्रोफाइल है, तो एनालिटिक्स का है, तो कहीं भी चल जाएगा। ओके सर। एक्सपीरियंस काउंट होगा इसमें पूरा। जैसे अभी हम लोग वैसे काम कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस काउंट होगा। अब अभी तो कंपनी B2B से मतलब B2B में जॉब करना है। अब क्या ये सब स्किल होंगे तो आप कहीं पे भी हो, यू गो टू B2B, यू गो टू ट्रैवल, एनीथिंग, यू हैव द स्किल्स, आपके ये सारी जगह काम आने वाला है। क्लियर? ऑपरेशंस में भी काम आएगा, सपोर्ट में भी काम आएगा, सारे एडमिन में भी काम आएगा, ये ऐसे ऐसे स्किल सेट होंगे। तो अभी लेट्स मूव अवे। तो एक्सट्रैक्शन वी हैव सीन फ्रॉम एनी डेटा सोर्स वी कैन कनेक्ट, एक्सेल से भी कर लो, वेब से कर लो, एक्सेस से कर लो, किसी फोल्डर से कर लो, एपीआई से कर लो, जेसन से कर लो, पाइथन से कर लो, एसक्यूएल से कर लो, कहीं से भी कर लो, है ना। फिर क्या है, ये देखो, दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप टीम। रिलेशनशिप मतलब डेटा एक टेबल में नहीं है। सेम लाइक आवर एग्जांपल, द डेटा इज नॉट इन सिंगल टेबल, सो सम रिलेशनशिप इज देयर इन बिटवीन। तो आप देखो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बना हुआ है, देख रहे हो, ये टेबल इससे कनेक्टेड है, ये टेबल इससे कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन कोई कॉमन कॉलम नहीं मिल रहा होगा उसको। सी हियर, तो दिस इज रिलेशनशिप। तो हम इसको डिटेल में समझेंगे क्या है ये रिलेशनशिप, क्या जरूरत है इसकी, ठीक है, एवरीथिंग वी विल सी। ठीक है, वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स, डैक्स डैक्स। सो द डैक्स थिंग वी विल लर्न लाइक दिस टीम। हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े डैक्स लिखेंगे और वेरिएबल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। द कॉन्सेप्ट वी जस्ट यूज, राइट, वेरिएबल कॉन्सेप्ट। तो सारी चीजें तो देखो श्वेता, अभी ये चीजें नहीं आती तो आप अच्छे अच्छे डैक्स नहीं लिख पाओगे ना। आप नॉर्मल एक लाइन में कब तक लिखोगे, आपको वेरिएबल कॉन्सेप्ट पता चाहिए। राइट। तो अच्छे अच्छे डैक्स देखेंगे हम लोग। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे अगली चीज में। यहाँ पे अच्छे अच्छे विजुअल्स है। कुछ विजुअल्स यहाँ से नहीं है तो बाहर से उठा लेंगे हम लोग। हमारे बाहर से भी विजुअल ला सकते हैं ना हम लोग यहाँ से। यहाँ पे आप जा रहे हो तो थ्री डॉट्स में क्लिक करो और यहाँ से बाहर से भी विजुअल ले आओ। वैसे तो इतने अच्छे अच्छे विजुअल्स है कि आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अभी कुछ कुछ एग्जांपल में हो सकता है बाहर से विजुअल लाने पड़े, तो वो भी लाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो। So this is visual. So mainly three components are there team: power query, power pivot and this visuals. तो इससे बनती है एक अपनी एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड पावर बीआई। एक काफी बेहतरीन एप्लीकेशन। नाउ लेट्स सी हियर एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज बहुत सारे हैं। इंटरेक्टिव है, रियल टाइम रिपोर्ट है, वो साइज कम हो जाता है डेटा का तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। अब सोचो एक्सेल पे अगर आपने 5 GB से डेटा ज्यादा डाल दिया तो होता क्या है श्वेता, फाइल हैंग इन होना स्टार्ट हो जाती है, करेक्ट राइट। है ना। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या जितना भी मर्जी डेटा डालो और लग रहा है डेटा ज्यादा है तो सर्वर से हम कनेक्ट कर लेंगे हम लोग डायरेक्टली, सर्वर से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेरी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें। तो हम लोग इस पे थ्योरी पे नहीं जा रहे क्योंकि हमारा कोर्स प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, बस ये दिखाने के लिए रखा है हमने, प्रैक्टिकल होगा। कुछ अच्छे अच्छे डैक्स थी यहाँ पे, हम कुछ 50-60 डैक्स कवर करते नजर आएंगे। ठीक है, जैसे हमें कैलकुलेट कर रहे हैं, हम स्विच कर रहे हैं, हम लोग फिल्टर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, की फिल्टर कर रहे हैं, हैज ऑन फिल्टर कर रहे हैं, सेलेक्टेड वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, हम डेट्स इन पीरियड कर रहे हैं, डेट्स बिटवीन कर रहे हैं, तो सारे के सारे 50+ डैक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। मतलब अच्छे अच्छे डैक्स, जो भी इंपॉर्टेंट डैक्स है वो हम सारे कवर करेंगे, क्योंकि इसी से चल रही है ना इसकी गाड़ी। पावर बीआई की जो गाड़ी है, डैक्स से चल रही है ना, डैक्स से। जैसे मैंने कहा 40% वेटेज तो डैक्स का ही है। ये डैक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो डैक्स इज नथिंग टीम। डैक्स बोल के हम लोग ऐसा लगता है बहुत हाई टर्म है, डैक्स इज नथिंग, दिस इज अ फॉर्मूला। एक्सेल पे जैसे फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फंक्शंस होते हैं ना, वहां पे इसको डैक्स कहते हैं, डैक्स। तो नाम अलग है लेकिन हाँ, ये डैक्स बहुत अच्छे हैं, कुछ एडवांस लेवल के डैक्स हैं। यानी आज से आपको 5 साल पहले की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो निकाल लो इस डैक्स के थ्रू, है ना। कुछ अच्छे अच्छे डैक्स है यहाँ पे। तो अब चलते हैं हम आगे टीम। सो होपफुली टीम एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। एक डेमो, एक आइडिया मिल गया सभी को, एवरीथिंग। यस। Yes, sir. चलो ठीक है, तो अभी देखते हैं द कोर्स ड्यूरेशन एवरीथिंग टीम। मैं कोर्स ड्यूरेशन दिखाता हूँ आपको। या तो हियर सर्विसिंग आल्सो वी विल कवर। तो समवेयर अराउंड 120 हम लोग एग्जांपल करेंगे यहाँ पे श्वेता, 120 एग्जांपल के करीब। ठीक है, अजहर सुरेंद्र 120 एग्जांपल हम करेंगे, प्लस हम Yes. सर्विसेज करेंगे, प्लस हम एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे, प्लस हम एक लाइव प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये काफी एडवांस लेवल का कोर्स रहने वाला है, 2 महीने का ये कोर्स।
2 महीने मैं बोल रहा हूँ, करीब 2.5 महीने तक जाएगा ये कोर्स टीम। ठीक है, 2 महीने 15 दिन तक ये कोर्स जा सकता है और लगातार हम मिलेंगे 8 to 10। तो लगातार मिलने का बेनिफिट अलग है, दैट यू विल सी इन द क्लास। जो भी रेगुलर बैचेस हैं, दैट इज क्रिएटिंग अ डिफरेंस, वो वीकेंड से अलग है वो बैच। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, एक एक हफ्ते आपने कोई आप में से डेली बैच तो नहीं किया ना श्वेता आपने पहले? जो बैच किया डेली तो नहीं था वो। नहीं नहीं, मेरे वीकेंड बैचेस थे। वीकेंड ना, तो देखो डेली में और मजा आएगा, आप टाइम दे रहे हो ना, आप देखो डेली में कितना मजा आता अच्छा। है। ठीक है, तो टीम अभी देखते हैं हम लोग ओवरऑल क्या है फीस वगैरह पावर बीआई की। तो ये बैच मैं बता रहा हूँ, ये बैच जो स्टार्ट होगा टीम मैं लिख देता हूँ। दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 13 से बैच स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट फ्राइडे को। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ये बैच जो होगा 13 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, 13 सितंबर। मंडे टू फ्राइडे इसका टाइमिंग रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। बैच टाइमिंग विल बी 8 to 10 PM। ठीक है, 10 बजे तक बैच चलेगा। आपको अगर कोई ऑफिस की दिक्कत आ रही है तो हम 9:30 पे भी खत्म कर सकते हैं। वी विल सी। Okay, Jijo, if you are facing any issues, we will keep it to till 9:30 also. Not an issue. Okay, Yeah, 9:30 will be fine, sir. 9:30 Okay. will be fine. Yes, yes. If Okay, earlier also no For me problem. too. okay. In that case, we will keep 9:30. Okay, 8 to 9:30 because Jijo office timings there, so 9:30 we'll keep it. So it will go till 2.5 months. ठीक है, 2 महीने 15 दिन का बैच रहेगा ये। इसकी फीस रहेगी टीम टोटल 16,000 फीस रहेगी इसकी पावर बीआई की, जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। 8,000 क्योंकि 2 महीने का कोर्स है तो 2 इंस्टॉलमेंट्स यू कैन पे। एंड श्वेता इन योर केस आई थिंक इट इज 50%। आप बात करने ना एक बार रजा सर से, ठीक है ना? श्योर श्योर आपका सर। पहले हुआ है, बात करना एक बार कितना फीस है आपका। ठीक है, यस। आप पता नहीं 50 रहेगा 30 रहेगा, वो कुछ ईयर पे है, वो ईयर पे डिपेंड करता है, आप एक बार क्लैरिटी ले लेना आपसे। ठीक है, श्योर सर। हाँ। इफ फुल फीस पेड बाय सम डेट टीम, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ टीम। अगर आपने ये फीस, क्लास स्टार्ट हमारी 13th को हो रही है, 13 तक आपको ये पेमेंट करनी है। 13 सितंबर तक आपने पेमेंट तो करनी ही है। इफ एनीबडी इज पेइंग इन फुल, अगर 16,000 पूरा पे कर रहे हैं तो लाइक एवरी बैचेस वी विल ऑफर 10% डिस्काउंट, लेकिन सिर्फ 13 तारीख तक। ठीक है, 13 के बाद आपने फीस पे की तो आप ये पे नहीं कर सकते हो, आपको इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। या तो आप पूरा भी दोगे तो 16,000 पूरा दे सकते हो, लेकिन कोई 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। विल नॉट गेट एनी डिस्काउंट आफ्टर 13। ठीक है, तो बिफोर बैच स्टार्टिंग, यानी 13 का आपको टाइम है आपके पास, 13 को बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये ठीक है, तो 13 को आप फुल फीस पे कर सकते हो एंड यू विल गेट 1600 का ये डिस्काउंट रहेगा। और अदरवाइज 8,000 फीस रहेगी टीम। ठीक है, काफी एडवांस लेवल कोर्स है, काफी जबरदस्त कोर्स रहने वाला है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइट होगा ये, काफी अच्छा हाईलाइट रहेगा आपके रिज्यूम में, काफी अच्छा हाईलाइट रहेगा। ठीक है, तो टीम क्लैरिटी आ गई ना आपको, बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, एवरीथिंग? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? Yes. So I have question, Azhar here. या तो मेरा क्वेश्चन इट्स रिलेटेड टू व्हाट सुरेंद्र आस्क्ड। तो मुझे करियर पर्सपेक्टिव से आई वांट टू नो द डिटेल्स, नॉट ओनली जॉब बट फ्रॉम या तो क्लियर पर्सपेक्टिव से डिटेल्स मतलब समझ नहीं पा रहा मैं, क्या बोल रहे हो? नो नो व्हाट आई सेड कि मुझे करियर पर्सपेक्टिव से ये अंडरस्टैंड करना है। करियर करियर। हाँ, तो देखो यार, ये अभी अजर है क्या, हाँ। इसका एक ऐसा स्किल सेट है ये वाला पावर बीआई। अगर आपको आता है ना तो आप बहुत सारे लोगों से तो अलग स्टैंड करते ही हो, और आप एक सैलरी के अलग ब्रैकेट में आप आते हो फिर। जैसे लोग काम कर रहे हैं ना, डेली ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, तो उनका पैकेज सपोज मैं मानता हूँ कि कुछ ही 10 तक है। अब पावर हम्म, बीआई का स्कोप क्या है, लोग अच्छे अच्छे पैकेजेस की मैं बात बताता हूँ, तो मेरी नजर में ऐसे ऐसे पावर बीआई एक्सपर्ट बैठे हैं, बहुत अच्छा एडवांस नॉलेज नहीं, नहीं पावर बीआई का तो अच्छा नॉलेज, लेकिन बहुत सारे अदर स्किल सेट ठीक ठाक से, एवरेज से स्किल सेट अच्छे से होने पे उनको अच्छे खासे 20 से 30 के बीच में है वो आज की डेट में। ठीक, ओके 20 से 30 लाख के बीच में कमा रहे हैं वो लोग। ओके ओके। उनमें एक पावर बीआई का 80 to 90% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो, और डेफिनेटली अच्छा 10% 20% अदर चीजें भी कर रही है। जैसे उनको एक्सेल भी धमाकेदार है उनका। अब मैं हम्म, बोलूंगा पाइथन धमाकेदार है, नहीं पाइथन धमाकेदार नहीं है, पाइथन वो लोग नॉर्मल बेसिक पे है वो लोग, लेकिन अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। तो पावर बीआई के बेसिस पे अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं। अच्छा जब आप अलग स्टैंड करोगे, पावर बीआई आप सीखोगे ना, तो आपको खुद ही पता चलेगा यार, आप इतने कॉन्फिडेंट होगे ना, खुद ही एटलीस्ट एक अच्छा स्किल सेट है आपके पास। अभी तक मेरे को पता नहीं था क्या करना है, कहाँ से करना है,
अब आपको पता है कि आपको AFCK से हम लोग कंटेंट देने वाले हैं, बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं, और 2-3 महीने में आप काफी एडवांस लेवल पे जाओगे आप। ये ऐसा नहीं होगा ना कि मैंने वीडियो दे दिया सर। वीडियो क्या होता है, Yes. पड़ी रहती है ना, कौन देखता है वीडियो? Same happened with me. हाँ? Yes. तो आपको मैं लाइव हम सीखेंगे चीजों को, लाइव आप मुझसे क्वेश्चंस करोगे, लाइव हम 2 महीने, बिल्कुल 2 महीने का टाइम है मेरे पास। तो 2 महीने बाद आप ये वाला स्किल सेट नहीं होगा आपका, काफी एडवांस स्किल सेट होगा, है ना? उसके बाद फिर आपका मन करेगा यार, आपको मुझे क्लैरिटी मिल गई, फिर आपका मन Okay. डेफिनेटली करने वाला है कि आप मल्टीपल चीजें सीखोगे फिर आप, है ना? तो ये एज ए करियर आपको सीखना है। जैसे अभी आपने पावर बीआई सीख लिया, कल को लग रहा है नहीं यार मुझे पावर क्वेरी भी सीखना है, कल को लग रहा है मुझे एसक्यूएल भी सीखना है, पाइथन भी सीखना है, तभी आपका Hmm. आपका ग्रोथ मिलेगी ना अजर, एक चीज पे नहीं अटक पाओगे ना। Yes, yes, I got it. तो ये एक लॉन्ग जर्नी रहेगी, लॉन्ग जर्नी। लेकिन पावर बीआई मिल गया तो पावर बीआई के बेसिस पे बस हाथ पाँव कर लो, इकट्ठा करो और जॉब जॉब ढूंढो सबसे पहले अच्छी वाली कोई। तो पावर बीआई आपके जॉब को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा, Okay. आपको ढूंढने में काफी बहुत अच्छा हेल्प रहेगा। कोई भी इंटरव्यूज आएंगे तो आप इजीली क्रैक करोगे उस चीजों को, है ना? आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा Okay. पूरा, मतलब So, sorry, I'm so sorry. Yeah, please. आप पूछो ना सुरेंद्र, क्या पूछ रहे हो? Yeah. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ था। ओके, सो एट द सेम टाइम पावर क्वेरी भी लर्न करना जरूरी है। आई मीन एज अ न्यू पर्सन इन पावर बीआई, तो इंडिविजुअली पावर बीआई कर ले पहले, या एट द सेम टाइम पावर क्वेरी भी कर सकते हैं? या देखो, आप अगर टाइम दे पा रहे हो तो दोनों कर सकते हो। आपको लग रहा है नहीं मेरे पास टाइम की दिक्कत है, क्योंकि वो रिलेट करते हैं दोनों कोर्स आपस में, ठीक है? तो अगर आपको टाइम दे पा रहे हो तो मैं प्रपोज करता हूँ कि एट ए टाइम एक ही करो, क्योंकि एक में ओके, फाइन। एक्सपर्ट बनो आप, यस, ठीक है? यस, फाइन। क्योंकि मेरी दोनों बैचेस है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप उसमें भी आ जाओ इसमें भी आ जाओ, अपना प्रैक्टिस नहीं हो पाती है एक्चुअली, यस सर, यस सर, ठीक है? तो एग्री। दोनों अलग अपना टाइम डिजर्व करते हैं, तो आप पहले एक टाइम पे एक ही ट्राई करो, क्योंकि बहुत श्योर। एडवांस रहने वाला ना, ये भी सीखोगे वो भी। अगर टाइम निकाल पा रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो कहीं पे, आपको ढूंढना है करना है पूरे पूरे दिन, तो अच्छा है, वो चीज सही है। फिर दोनों एक साथ करो, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि आपके पास टाइम है, लेकिन आप जॉब भी कर रहे हो, फिर आपको कोर्सेज भी करना है, तो डू ओनली वन थिंग। हो नहीं पाता, हम कितना भी मोटिवेट रहते हैं ना, वो दोनों चीजें फिर हम टारगेट नहीं कर पाते, नहीं कर। ठीक है? अब तो हम सोचते हैं नहीं कर लेंगे, टाइम बचेगा, लेकिन टाइम बचेगा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर एक भी जगह सही से नहीं हो पाया तो, है ना? ठीक है, परफेक्ट। तो ये भी चीज क्लियर है। तो टीम, अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये ये हमारे कुछ ये डिटेल्स है, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप अपनी फीस दे सकते हो यहाँ पे इस नंबर पे, जीपे नंबर पे। और वो जो भी आपके पास कांटेक्ट है, स्क्रीनशॉट भेज दो उनको। मेरे ख्याल से होपफुली आपके पास कॉन्टैक्ट्स भी होंगे, ये इमरान रजा सर का, मेरा मेरा देख लो, ये रहा कॉन्टैक्ट मेरा। किसी को मुझसे अगर कुछ मैसेज करना है तो कर सकते हैं डिटेल में बात करने के लिए, ठीक है? तो ये नंबर भी आप ले सकते हो और ये जीपे का नंबर भी आप ले सकते हो। तो ये बैच हमारा बराबर स्टार्ट होने वाला है टीम, अगले फ्राइडे को, ठीक है? ओके जीजू, द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 13। और ये बैच टीम, दिस बैच विल बी कंप्लीटली इन इंग्लिश, और हम हिंदी में भी रिपीट करेंगे, ओके? ठीक है, सो हियर द बैच विल गो ऑन इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड डेफिनेटली सम हिंदी आल्सो वी विल यूज इन टाइम टू टाइम, ओके? क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों स्टूडेंट है ना, जिनको इंग्लिश हिंदी नहीं आती है ढंग से, तो हम वो भी स्टूडेंट को कवर करना है अपने को। यस, क्लियर है एवरीवन? यस। आपको जितने भी क्वेश्चन से पूछो, जितने भी मजे आएगा फिर, है ना? बैच में जितना भी चीजें लग रही है, तो इस तरह से अगर हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो कोई आप एक बेहतरीन जगह पे हो, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने भी AFCK से चीजें की है उनके स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे, ये माउथ पब्लिसिटी पे इंस्टीट्यूट चल रही है ना? यहाँ का मार्केटिंग हमारा अच्छा नहीं है, हम सिर्फ माउथ पब्लिसिटी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हमारे अच्छी अच्छी जगह प्लेस है ना? अच्छे अच्छे स्किल सेट है उनके पास, स्किल सेट, है ना टीम? आपने देखे होंगे अपने आसपास के फ्रेंड्स, अगर देखा होगा तो अच्छे अच्छे फ्रेंड ही आपने बताया होगा किसी अपने फ्रेंड्स ने, है ना? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ टीम, ये रिकॉर्डिंग तो मैं स्टॉप कर देता हूँ, और फिर हम आगे देखते हैं। 1 मिनट, हाँ, तो मैं इसको